Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. Let's start our session with the name of Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. My name is Pratab Rahman Khan and I am associated with Indus Hospital as a clinical dietitian. Today we are gathered here for the 6th biennial conference ICON 2022 scientific session by Clinical Nutrition Department of Indus Hospital and Health Network. On behalf of the Clinical Nutrition Department, I would like to welcome all the participants here to this session, identifying nutrition myths and misconceptions among clinicians. As you all know, healthy dietary intake is important for the maintenance of general health and wellness, the prevention of chronic illness, optimization of life expectancy, and the clinical management of all disease states. Dietary myths and misconceptions that are poorly supported by scientific evidence may stand in the way of healthy dietary intake. The prevalence of myths and misconceptions on the internet has led to widespread confusion over nutrition facts versus fiction. Physician can help dispel nutrition knowledge for patients and give sound nutritional advices by focusing on actual foods and broader dietary patterns. To help address these nutrition myths and misconceptions, we are going to guide you by our nutrition experts. If Now, I would like to welcome Ms. Yumna Sadiq to present Identifying Nutrition Misconceptions Among Clinicians. Yumna Sadiq is a registered dietitian from Pakistan Nutrition and Dietetic Society and currently working as an in charge of clinical nutrition department at Indus Hospital and Health Network. She has plus 10 years of experience in the field of nutrition. She has been associated with Indus Hospital and Health Network since 2015. She is dedicated towards her field and strive for success in creating a more productive working environment. Over to you, Ms. Yumna Sadiq. Assalamu alaikum. My name is Yumna Sadiq, and I am currently working as a senior clinical nutritionist in Indus Hospital and Health Network. So today I'm going to discuss regarding different misconceptions, nutrition misconceptions among clinicians. Let's start our presentation. Disclosure: I have no personal, professional, and financial relationship with any commercial interest related to the content of this presentation. Objectives. My two main objectives are: the first one is to identify the misconceptions prevailing among clinicians and then to clarify the misconceptions with the help of case studies and examples. So starting with our first misconception that is the most common is dietitians add unnecessary food supplements in patients' nutrition regimen. कॉमनली हम लोगों के पास एक सवाल आता है क्लिनिशियंस की तरफ से कि हम क्यों इतने जो है वो दूध के डब्बे जैसे कॉमनली कहा जाता है वो क्यों इतना पेशेंट्स को देते हैं. तो उसके कुछ रीजंस होते हैं जिनके बिना पे हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं एंड देन हमें ये लगता है कि इनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है. ठीक है, सबसे पहले तो ये कि जब हम उनका डाइटरी रिकॉल लेते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि उनका जो ओरल इनटेक है वो लेस देन 70% है, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट से बहुत कम है. तो ऐसे चाहे वो ओबीज हों, चाहे वो नॉर्मल वेट के हों, चाहे वो अंडर वेट के हों, लेकिन अगर वो 70% लेस अपने इनटेक है उनकी फॉर 2 to 3 days, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उनका सप्लीमेंट ऐड करें.
सेकेंड रीजन जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि हाई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल वेट के साथ होते हैं और देखने में कोई उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो रही होती, लेकिन अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट्स निकालें तो उनकी हाई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंटल केस आ सकता है आपके पास जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें हमें लग रहा है कि पेशेंट की इनटेक इतनी नहीं है और हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं, तो हम ऐसे पेशेंट्स को ऐसे सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सही से चबा नहीं सकते, अनेबल टू च्यू और स्वॉलो, वो निगल नहीं सकते, चबा नहीं सकते, तो इसकी वजह से उनकी इनटेक कम है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए भी हम सप्लीमेंट्स वगैरह एडवाइस कर रहे होते हैं। फोर्थ चीज़ ये आ जाती है न्यूट्रिशन बिल्डअप। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट्स जो एडमिटेड होते हैं या हमारे पास ओपीडीज में आते हैं, उसमें ये होता है कि पेशेंट जो है उसकी सर्जरी प्लान्ड है या कोई ऐसी बड़ी बीमारी उसको डायग्नोज हो गई है या उसका कोई बहुत बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी का पेशेंट है, अभी वो वेट लूज नहीं कर रहा लेकिन इन फ्यूचर उसके चांसेस हैं कि वो वेट लूज करे, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर हम लोग फूड सप्लीमेंट्स स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा, उसके अलावा ऑल्टर्ड टेस्ट, जो कि बहुत सारी बीमारियों जैसे लिवर डिजीज में, किडनी डिजीज में ऐसा होता है कि ऑल्टर्ड टेस्ट हो जाता है, तो उसमें भी हमें फिर सप्लीमेंट्स की मदद लेनी पड़ती है। और लो बीएमआई, ऑब्वियसली अगर पेशेंट पहले ही लो बीएमआई के साथ आएगा तो हमें उसको सप्लीमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। सप्लीमेंट स्टार्ट करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि पेशेंट जो है वो फर्दर मैलनरिश ना हो या कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस वजह से हम फूड सप्लीमेंट स्टार्ट कराते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी भी पेशेंट को इन सब में से कोई भी ऑप्शंस हैं जो लग रहा है कि चीज़ें हैं, तो आप उनको सप्लीमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल केस सिनारियो मैंने इसमें डाला है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट उसकी जो है एनर्जी की वो 2300 है और उसका जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 120 ग्राम्स हमने निकाली है और बीएमआई 18 का है, जो कि मैलर्ज नहीं है लेकिन बॉर्डर लाइन पर है, तो ऐसे पेशेंट को जब हमने इवेल्युएट किया तो एक्चुअल सिनारियो में हमें क्या पता चला कि उसकी जब हमने डाइटरी रिकॉल ली कि हम तो उसको 2300 कैलोरीज का मील प्लान दे रहे हैं, लेकिन जो उसकी एग्जैक्ट पोर्शन साइज जितना वो कंज्यूम कर रहा है उसके बाद जो एनर्जी इनटेक हुई उसकी वो सिर्फ 1200 कैलोरीज की। हमने उसको खाने में फॉर एग्जांपल मल्टीपल चीज़ें दी हैं, हाई कैलोरी हाई डेंसिटी प्रोटीन वाली, लेकिन जब वो ले रहा है तो उसमें से इतनी कम क्वांटिटी ले रहा है कि वो सिर्फ 1200 कैलोरीज ही फुलफिल कर पा रहा है। उसके अलावा प्रोटीन इनटेक भी जो 120 की अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ 80 ग्राम्स ले रहा है। और रीजंस क्या निकली हमने जब इसको इवेल्युएट किया, ऐसे पेशेंट को यूजुअली वो रेगुलर डाइट पे होते हैं या हाई कैलोरी हाई प्रोटीन पे होते हैं, तो क्लिनिशियंस ये कहते हैं कि इनको ज़रूरत नहीं है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की, लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, इसको ज़रूरत है क्योंकि ये इनटेक इसकी सही नहीं है, तो हम अगर थोड़ी क्वांटिटी में सप्लीमेंट देंगे तो वो ज़्यादा कैलोरीज उसके पास जाएंगी। हमारा ये था पहला मिसकंसेप्शन। अब हम आते हैं सेकंड मिसकंसेप्शन में, डेट इज एग योक कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ फास्फोरस। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन यूजुअली नेफ्रोलॉजी की जो फैकल्टी है, नेफ्रोलॉजी में जो क्लिनिशियंस काम कर रहे होते हैं उनके दरमियान हमने इसको ऑब्जर्व किया है कि वो अक्सर हमें ये कहते हैं कि भाई आप एग योक बंद कर दें पेशेंट का, इसलिए क्योंकि इसमें फास्फोरस ज़्यादा है। तो इसके लिए एक हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक लार्ज एग जो होता है उसके अंदर कितना फास्फोरस मौजूद है, उसमें 63 टू 78 मिलीग्राम फास्फोरस मौजूद है। वेयर एज अगर हम फूड के डिफरेंट आइटम्स देखें जो कि फास्फोरस रिच आइटम्स कहलाए जाते हैं, जैसे जिसमें आ गया व्हीट ब्राउन, चीज, मिल्क, योगर्ट, चिकन, लेंटिल्स, इनमें फास्फोरस हाई अमाउंट में होता है, तो इनका अगर हम देखें तो उसके एग के हिसाब से इनमें डबल ट्रिपल टाइम ज्यादा है। ठीक है, तो हम कभी भी मिल्क कंप्लीटली बंद नहीं करते, चिकन कंप्लीटली बंद नहीं करते, दालें कंप्लीटली बंद नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम उनकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपका पेशेंट 2 से 3 अंडे ले रहा है तो आप उनको 1 अंडे पर ले आए, बजाय ये कि पूरा अंडा बंद करें। पूरा अंडा बंद क्यों करना बुरा है, इसके लिए आप ये देखें कि एग की कंपोजिशन क्या है, न्यूट्रिशनली वो क्या कंटेन करता है। तो जो एग वाइट्स हैं उसके अंदर 88% तो सिर्फ पानी पानी है, फिर बचा प्रोटीन एंड देन कुछ बी कॉम्प्लेक्स और ट्रेसेस ऑफ फैट हैं। और अगर इसके अगेंस्ट आप एग योक देखते हैं जो कि बंद कर दिया जाता है, उसके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा है, 16.5% प्रोटीन है, एग वाइट से ज़्यादा प्रोटीन है, फैट इसमें मौजूद है और फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के भी मौजूद हैं।
ठीक है, और मिनरल एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। इसी के साथ आप देखें यहाँ न्यूट्रिटिव वैल्यू डली हुई है। कैलोरीज एक अंडे में, पूरा अंडा जो हम देते हैं वो 75 है। कार्बोहाइड्रेट इसमें कुछ नहीं है। प्रोटीन 7 ग्राम है, फैट 4 to 7 ग्राम, ये वेरी करता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ एग वाइट देते हैं तो अगर 75 कैलोरीज पूरे अंडे में, तो एक एग वाइट अगर हम दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 17 कैलोरीज हैं। अगर हम 2 एग वाइट भी कर देते हैं तो वो 17 + 17 देख लें कितना होता है, तब भी इतनी कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करेगा। और प्रोटीन का कंटेंट भी है, जैसे आप देख रहे हैं कि एग वाइट में कम है और एग योक में ज्यादा है, तो प्रोटीन भी कम हो जाएगा। अंडा सिर्फ उस सूरत हाल में योक जो है, गाइडलाइंस ये कहती हैं योक तब बंद किया जाए जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। ठीक है, लाइक कोलेस्ट्रॉल अगर किसी पेशेंट का परसिस्टेंटली हाई आ रहा है, वो मेडिकेशंस पे, तो हम उनको कहते हैं कि हफ्ते में 3 बार आप अंडे की जर्दी समेत आप अंडा खाएं, बाकी टाइम अंडे की सफेदी खाएं। ठीक है, इसके अलावा हम अंडे को बंद नहीं करते, क्योंकि उसकी अपना वो कंप्लीट इतना अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड करता है कि वो एक हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन है। तो अगर आप उसकी जर्दी निकाल देंगे और सफेदी रख लेंगे तो उसकी कंपैरेटिवली पूरे अंडे से जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन है कॉन्सेप्ट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड फूड्स, जिसको आम जबान में हम गर्म तासीर और ठंडे तासीर वाले खाने कहा जाता है। तो कॉमनली कौन कौन से हैं? एक तो जो गर्म खानों में समझा जाता है वो इंजीर हो गया, मछली, मुर्गी, अंडा, दूध, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि गर्म गजाई समझे जाते हैं कि गर्म है गजा। इससे क्या होगा, इससे जो है वो टांके पक जाएंगे या मिसकैरेज हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें को समझा जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है या नहीं है ये हम आगे देखते हैं। बाकी कोल्ड फूड्स जो होते हैं, जैसे कि ठंडे तासीर वाले कहा जाता है, जिसमें दही हो गया, कॉमनली केला समझा जाता है, चावल समझे जाते हैं, कहवा समझा जाता है कि आप खाने के बाद जो है वो कहवा ले लो, या आप चावल का इस्तेमाल करोगे तो ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं, इससे नज़ला हो सकता है, इससे और कोई जीआई के इश्यूज हो सकते हैं, वो समझे जाते हैं। और यही चीज़ जो है पेशेंट की अपनी भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन हैं कि वो खुद भी ये सोच रहे हैं कि ये हाँ वाकई ये गर्म खाने हैं और वाकई ठंडे खाने हैं। इसमें पेशेंट्स का ज़्यादा रोल है, क्लिनिशियंस का इतना रोल नहीं है, लेकिन उनके पास आते ज़रूर हैं पेशेंट ये बोलकर कि भई ये जो है ना गर्म है इसलिए हम नहीं ले रहे, ये ठंडा है इसलिए हम नहीं ले रहे। तो आपने उनको क्या समझाना है, या आप कैसे उनका मिसकॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं? वो ऐसे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जो ओरिजिनल चीज़ है वो ये है कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है। व्हाट इज़ थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड? व्हाटएवर यू ईट, जो भी कैलोरीज आपकी जाती हैं वो कुछ कैलोरीज आपकी डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज एंड स्टोर करने में भी कैलोरीज यूज होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने खाया है वो सारी एनर्जी में तब्दील हो जाए। कुछ कैलोरीज बर्न होती हैं खाने को हजम करने के लिए एंड देन स्टोर करने के लिए। ठीक है, मेटाबोलाइज एंड स्टोर करने के लिए। इसको हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। और इसका टोटल जो वो पड़ता है, लाइक आपकी बॉडी टेम्परेचर पे ज़्यादा होना कम होना, उसका सिर्फ 10% होता है, जो कि बिल्कुल समझें कि नेग्लिजिबल है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि गर्म होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ठंडी होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए पेशेंट्स को ज़रूरी है कि उनको क्लियर किया जाए कि कोई गर्म ठंडा की तासीर नहीं होती है। ऐसी कोई चीज़ न्यूट्रिशनल जिसे कहेंगे साइंस में, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन नंबर 4 आ गया है, जो कि है फैट फ्री डाइट फॉर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, जो कि यूजुअली जनरल सर्जरी की जो फैकल्टी है उसके अंदर हमें जो है वो देखने को मिल रहा होता है कि जो है क्लिनिशियन सर्जन जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि काइंडली पेशेंट एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के साथ है या पेनक्रेटाइटिस का क्रॉनिक पेशेंट है, इसका प्लीज फैट फ्री डाइट कर दें। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि वाकई फैट फ्री डाइट करनी है या नहीं करनी? तो जो गाइडलाइंस रहती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस वो ये है कि इनिशियल जो स्टेटस होता है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में, उसमें तो आप कंप्लीटली एनपीओ रखें पेशेंट को। ठीक है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और अगर माइल्ड केस है, एनपीओ ब्रेक करना है, देन आप स्मॉल फ्रीक्वेंट ओरल लो फैट फीडिंग्स को प्रायोरिटाइज करें कि ये चीजें देनी है। इसमें भी लो फैट फीडिंग्स है, नॉट कि आप फैट फ्री करते हैं। क्यों नहीं है फैट फ्री करना, क्यों नहीं जरूरी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एमसीटी ऑयल जो है वो हम स्टार्ट करा देते हैं अगर के फैटी स्टूल्स हो रहे हों, और पेनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट हो जाती है विद ईच मील, ताकि अगर फैट नहीं एब्जॉर्ब हो रहा हो तो वो स्टार्ट हो जाए।
ठीक है। फिर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जो होते हैं उसमें हम जो हैं क्लिनिशियंस या जो न्यूट्रिशन टीम है वो यही सजेस्ट करती है कि एनजी या एनजे फीडिंग्स जो है वो स्टार्ट हो जाएं, और फार्मूला जो भी वो होता है हमारे पास सप्लीमेंट्स, उसमें के अंदर पेप्टाइड्स होने चाहिए, एमसीटीज होने चाहिए। अगर के ईएन रूट नहीं है, यानी एंटायरली पेशेंट को हम नहीं कुछ भी दे सकते, तो पेरेंटल न्यूट्रिशन अगर हम देंगे तो वो भी फैट फ्री नहीं देंगे। आप लिपिड इमल्जन के साथ यानी फैट कंटेनिंग पेरेंटल न्यूट्रिशन आराम से दे सकते हैं, क्योंकि वो फैट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से बाईपास हो जाएगा। मतलब लाइक आपको वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रहा है, वो आपके इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा जो कि एग्रीवेट करे। ठीक है। अच्छा, क्यों हम फैट फ्री नहीं दे सकते डाइट, क्यों नहीं रिकमेंडेड? इसलिए क्योंकि अगर आप देखें ये एक्सचेंज लिस्ट आपके सामने है, इसमें कुछ फूड ग्रुप्स दिए हुए हैं साइड पे, स्टार्च, ब्रेड, वेजिटेबल्स, चपाती, राइस, लेंटिल्स वगैरह, और मिल्क है, मीट एंड मीट अल्टरनेटिव्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो इसमें आप देखें कि जो फैट कंटेंट है वो शुरू के तीनों ग्रुप्स में थोड़ा बहुत मिकदार में है। ठीक है। अगर आप ब्रेड दे रहे हैं तो उसमें तो होगा ही होगा, लेकिन हाँ अगर आप चपाती या राइस विदाउट ऑयल प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें नहीं होगा। फिर मिल्क आ जाता है, कोई भी मिल्क मिल्क फैट फ्री नहीं होता। लो फैट मिल्क अवेलेबल है, फैट फ्री मिल्क अवेलेबल नहीं है। मीट एंड मीट ऑल्टरनेटिव्स जितने भी लीन ले लें, जितना भी लीन ले लें, 3 ग्राम्स तो वो फिर भी प्रोवाइड करेगा। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द ग्रुप जिसके अंदर फैट बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो यू कैन मतलब लाइक अब आप देख सकते हैं कि अगर हम पेशेंट को फैट फ्री डाइट में रखेंगे तो हम क्या देंगे? सिंपल, बगैर मतलब ऑयल के कंटेनिंग चपाती या राइस विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमें उनको कंप्लीट मील देना है, क्योंकि जब तक हम नहीं देंगे तब तक वो उनकी टॉलरेंस नहीं बढ़ेगी और वो डिप्राइव होंगे और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हुआ है तो वो क्रॉनिक में भी तब्दील हो सकता है। तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट मिसकंसेप्शन आ जाता है कि मिल्क जो है वर्स करता है चेस्ट कंडीशन और नमोनिया को। कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको क्लिनिशियंस अक्सर ही कह देते हैं कि अच्छा अगर कफ हो रहा है या नज़ला हो रहा है या नमूनिया हो गया है इसको, तो इसका दूध बंद कर दो, इसका दूध बंद कर दो, ही विल बी फाइन। चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर इस तरह के पेशेंट्स को जो है इस तरह की चीज़ें बताई जा रही होती हैं। ठीक है। इसमें हमने एक केस स्टडी डाली है, इसको केस स्टडी के हिसाब से हमने इसको सॉल्व करने के पेशेंट को देखेंगे कि एन एस्थमेटिक पेशेंट विद नो मिल्क इनटेक टू प्रिवेंट नमोनिया एंड चेस्ट कंजेशन। हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको, जो कि एस्थमेटिक का नोन पेशेंट था, उसकी कोई मिल्क इनटेक नहीं थी ताकि उसको नमोनिया या चेस्ट कंजेशन ना हो। सही है। डाइट हिस्ट्री जब हमने ली तो हमें पता चला कि इसको उसने ये बताया कि इट वाज एडवाइज टू मी टू स्टॉप मिल्क एंड योगर्ट कंप्लीटली एज इट कंट्रीब्यूट्स टू म्यूकस कंट्रीब्यूशन फॉर्मेशन। ठीक है। तो पेशेंट्स का अपना भी खुद भी बहुत बड़ा बिलीव होता है ये कि जो है दूध पीने से या दही खाने से, दूध की कोई भी चीज़ खाने से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कफ होगा, बहुत ज़्यादा हमारे पास नमूनिया होने के चांसेस है, हमारा जो कोल्ड है वो बिगड़ सकता है। तो हम ये देखते हैं कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ज़्यादातर लंग रिलेटेड डिजीजेज ऐसी कौन सी हैं जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं। तो उनमें सबसे पहले तो आ जाता है एस्थमा, फिर पल्मोनरी टीबी इन्वेशंस को बंद हो जाता है, ब्रोंकोलाइटिस हो, नमोनिया, चेस्ट कंजेशन, कॉमन फ्लू और कफ में भी यूजुअली बंद होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस और सीओपीडी पेशेंट्स। ये सब जब हमारे पास आ रहे होते हैं तो या तो उनको क्लिनिशियंस ने मना कर दिया होता है दूध या दूध से बनी हुई अशिया लेने से, या फिर उन्होंने खुद जो है अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है कि हम ये नहीं लेंगे क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा फेलगम यानी बलगम जो है वो बन रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि मिल्क का क्या रिलेशनशिप है, क्या वाकई वो ऐसा होता है या नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मिल्क है क्या। तो मिल्क इटसेल्फ इज़ अ इमल्जन ऑफ फैट इन वाटर। ठीक है। इमल्जन मीन्स कि कोई भी चीज़ के मिक्सचर जो कि फैट इन वाटर है, इमल्जन है बेसिकली मिल्क। ठीक है। तो जब आप इसको ड्रिंक करते हैं या पेशेंट जो भी है वो ड्रिंक करता है तो क्या होता है, वो उसके आपके जो स्लाइवा है उसके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है।
जब वो मिक्स हो जाता है तो क्या होता है कि वो आपकी सेंसरी परसेप्शन ऑफ जो मिल्क है उसको चेंज कर देता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके मुंह में एक थिकनेस कोटिंग होने लगी है माउथ में, और आफ्टर फील बहुत थिकी थिकी सा हो रहा है मुंह में सलाइवा, क्योंकि वो थिक हो जाता है। वो सेंसरी परसेप्शन मिल्क के पीने के कंज्यूम करने के बाद चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फैट इन वाटर का इमल्जन है। ठीक है, तो इसमें इसके बाद क्या होता है कि पेशेंट फिर या जो भी लोग हैं जो लेते हैं वो ये समझते हैं कि हमारा जो मिल्क हमने पिया है इसके बाद हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो कफ हो रहा है, या बहुत ज़्यादा हमें जो है ना फेल्गम प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो उनके अपना मुंह का जो वो है इनफैक्ट जो मिल्क इमल्जन जो उन्होंने लिया है वो ही उनके मुंह में और गले में जो है वो फिर रहा होता है, जिससे उसको वो फील कर रहे होते हैं कि ये जो है समथिंग इज मतलब मिल्क लेने से हमारा बढ़ गया है वो। जबकि आप ये सोचें कि मिल्क पीने के बाद मतलब जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे जीआई में जाता है, यानी कि स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, वो हमारे लंग्स में नहीं जा रहा होता। ठीक है, जब वो लंग्स में नहीं जा रहा है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके ये चीज बढ़ाए कि आपको ऐसा फील हो कि म्यूकस ज्यादा बन रहा है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और क्लियर करने वाली हैं कि हमारे पास अब ये न्यू चीज आ गई है, ये कि मार्केट के अंदर सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल गए हैं, जैसे जिसको हम मिल्क की सप्लीमेंट समझते हैं, और हम कहते हैं कि मिल्क का सप्लीमेंट बहुत अच्छा है सोया मिल्क। तो यूजुअली हमने ये भी इनकाउंटर किया है कि पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं बच्चे खास तौर पे, तो उनके जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना वो ये कहते हैं कि भाई इसका दूध बंद कर दो, उसी जगह इसको सोया प्रोडक्ट दे दो, इसलिए क्योंकि इसके अंदर वो वाली चीज नहीं है जो कि मिल्क में होती है। ठीक है, तो क्या होता है वो मार्केट प्राइस पे डबल ट्रिपल टाइम्स एक्सपेंसिव होती हैं प्रोडक्ट्स, और उनका कोई यूज नहीं है। वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कभी कोई पेशेंट को मिल्क एलर्जी हो फ्रॉम काओ या बफेलो तो हम उसको सजेस्ट करते हैं, वो भी डॉक्टर की खास टेस्टिंग और उन चीज़ों के बाद। ऐसा नहीं होता कि हम पेशेंट को डायरेक्टली वो सोया मिल्क स्टार्ट करा दें। और अगर बच्चों की बात की जाए तो तकरीबन 60 to 70% जो बच्चे हैं वो उनकी अगर हम उनको देखें तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, दूध से कर रहे होते हैं। अगर लेस देन 1 year to 2 years हैं तो 60 to 70% कैलोरीज उनकी दूध से पूरी हो रही होती हैं। और अगर कि हम इसको बंद कर देंगे, चाहे वो एक हफ्ते के लिए बंद करेंगे, निमोनिया की कोई एपिसोड हो गई है या चेस्ट कंजेशन की कोई एपिसोड हो गई है, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, आपने दूध बंद कर दिया, तो क्या होगा वो तेजी के साथ डिक्लाइन होगा, क्योंकि 70% 60 to 70% उसकी कैलोरीज जो है वो दूध से आ रही थी और दूध बंद हो गया है। ठीक है, ऐसे मोमेंट में क्या होता है पेशेंट अपना 2 से 3 किलो वजन कम कर देते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें या ओल्ड एज की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि उसमें दूध कम्प्लीटली बंद कर देते हैं कि भाई इसका तो ये मसला चलेगा, सर्दियां आ गई हैं दूध बंद कर दो, इससे तो म्यूकस बहुत ज्यादा बनेगा, बंद कर दो। तो उसमें क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस वैसे ही ओल्ड एज का ही। अब तो जवानों को भी ये मसले हो गए हैं कि विटामिन डी कैल्शियम की कमी है। वो क्यों है? क्योंकि हमने इन सब मिसकंसेप्शन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। तो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो आप उनको समझाएं कि आसान लैंग्वेज में समझाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि जो दूध आप पी रहे हैं वो आपके स्टमक में जा रहा है, ना कि आपके लंग्स में जा रहा हो, जिससे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप ऐसा ना करें, ना तो आप सजेस्ट करें और ना आप जो है पेशेंट्स को अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप उनको मना करें कि ठीक है अगर उसको दूध पीने से ज्यादा नजला हो रहा है तो आप बंद कर दें। ऐसा नहीं करें, आप उनको समझाएं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको दूध पिलाएं, क्योंकि ये इसी के ऊपर जो है ना रिलाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिसकंसेप्शन जो कि है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वर्सेस पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अक्सर और बेशतर वार्ड्स में यूजुअली, क्योंकि ये इन पेशेंट में हो रहा होता है, आउट पेशेंट में इतना होता नहीं है, तो इन पेशेंट में यूजुअली क्या होता है कि ये सवाल उठता है कि हमें टीपीएन देना है कि पीपीएन देना है। सही है, तो सबसे पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन है क्या। पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो कंटेन क्या क्या करता है, कैलोरीज उसमें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब का मिक्सचर जो है वो पेरेंटल न्यूट्रिशन कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है ये डिसाइड करते हुए कि क्या इस पेशेंट को पीपीएन चलना चाहिए यानी कि पेरिफेरल चलना चाहिए न्यूट्रिशन, या इसको सेंट्रल लाइन से टीपीएन चलना चाहिए। ये एक कंफ्यूजन क्लिनिशियंस में आ जाती है और वो समझ नहीं पा रहे होते कि कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज
पेशेंट के लिए बेहतर नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। टीपीएन वर्सेस पीपीएन, व्हाट्स द डिफरेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टीपीएन क्या है। टीपीएन इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो कि सेंट्रल लाइन से जाएगा, या तो पिक लाइन हो आपकी या सेंट्रल लाइन हो, ठीक है, उसी से ही जा सकता है। ये पेरिफेरल आपके नॉर्मल वेन से नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट जो कि कैंडिडेट हो सेंट्रल लाइन का, तो आप उसको टीपीएन आराम से चला सकते हैं। इसमें कोई ऑस्मोलैरिटी की लिमिटेशंस नहीं होती। जितना भी कैलोरीज डाल दो, जितना प्रोटीन, जितना कार्बोहाइड्रेट डाल दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से उसको दे सकते हैं, ठीक है। और टिपिकली 25% डेक्सट्रोज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल भी होता है, और 25% डेक्सट्रोज आप डायरेक्टली उस सोल्यूशन में डाल के सेंट्रली दे सकते हैं, उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यूजुअली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी अगर कोई पेशेंट आपको लग रहा है जो कि ग्रेटर देन 14 डेज आपका उस पर रहेगा, पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रहेगा, तो फिर आपको स्टार्ट कराना ज़रूरी है कि आप उसको टीपीएन पे ले आएँ बजाय पीपीएन पे रखने के, ठीक है। और इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली मेट कर सकता है। अगर आपके पेशेंट 1500 कैलोरीज का रिक्वायरमेंट रखता है या 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रख सकता है, वो आराम से कर सकता है, ठीक है। इससे टीपीएन से चला जाएगा। वर्सेस अगर हम पीपीएन देखते हैं, तो पीपीएन जो है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल जा सकता है। अगर आप इसको सेंट्रल लाइन से देना चाहते हैं, आप आराम से दे सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि पेशेंट की पता नहीं पिक लाइन पास हो ना हो, सेंट्रल लाइन हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप यू कैन गिव द ऑर्डर टू मेक पीपीएन। और अगर इसकी शाम तक रात तक जब भी सेंट्रल लाइन पास हो, आप उसको शिफ्ट आउट कर दें टीपीएन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो टीपीएन है वो कभी भी पेरिफेरली नहीं जा सकता, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी इसलिए क्योंकि जो वेन्स होती हैं उसकी एक खास ऑस्मोलैरिटी होती है। उसको मेंटेन करने के लिए जो भी पीपीएन बैग बनेगा उसको लेस देन 900 जो है ऑस्मोलैरिटी उसकी रखनी जरूरी है। मैक्सिमम आप 12.5% डेक्सट्रोज दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर आप डेक्सट्रोज भी नहीं ले जा सकते। और क्योंकि इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी को ख्याल रखना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा रखना होगा। जितना फ्लूइड होगा उतनी कम ऑस्मोलैरिटी होगी, जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म होता है, लेस देन 14 डेज का पेशेंट का कैंडिडेट है और उसको कोई ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, यानी वो मैल नरिश भी नहीं है, और आपको लग रहा है 2 से 3 दिन में ये एंटायरली आ जाएगा, तब आप पीपीएन का ऑप्शन चला सकते हैं। उसको सेंट्रल लाइन ना पास करवाएं, ना उसको जो है वो करें। बेहतर ये होगा कि आप उसको पेरिफेरली चला दें, सपोर्ट मिल जाएगी, एंड देन फिर ऐसा ऐसा 1-2 दिन में जब वो एंटायरली जा रहा होगा तो फिर आप उसमें शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। इसके बेसिस पे आपने पेशेंट को इवेलुएट करना है कि हमने टीपीएन देना है कि पीपीएन देना है, और पीपीएन देंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, टीपीएन देंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखेंगे, जो पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो सेंट्रल लाइन से जा सकता है, लेकिन जो टीपीएन है वो पेरिफेरल लाइन से नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने इधर बता दिया कि मल्टीपल चीज़ें हैं, ऑस्मोलैरिटी है, फ्लूइड है, डेक्सट्रोज की परसेंटेज है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट मिसकंसेप्शन आ जाता है नंबर 7, दैट इज वेट गेन इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि पेशेंट जो है, क्लिनिशियन ये कहता है कि भाई हमारा जो पेशेंट एडमिटेड है इसका वेट गेन करा दो 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, प्राइमरी टीम क्या एक्सपेक्ट करती है हमसे कि हम जो है ना एक वीक में 2 से 3 kg जो है वो वजन बढ़ा सकते हैं। या तो वो खुद कोशिश करते हैं चीजें ज्यादा करके, या फिर वो हमसे कहते हैं कि भाई इसका कम से कम टारगेट ये रखते हैं कि सर्जरी होने वाली है इसकी, या कोई भी इस तरह का टीबी का पेशेंट है, या कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि मैल नरिश्ड है और आपको लग रहा है कि इसको कीमोथेरेपी भी होगी और कम हो जाएगा, तो इतना वजन बढ़ाकर आ जाए, 1 हफ्ते में 2 से 3 kg वजन बढ़ा लें, ठीक है। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि भाई स्टार्ट कर दें, आप ओरल भी दे दें, एंटेरल भी दे दें, पेरेंटल भी दे दें, न्यूट्रिशनली कंप्लीटली बिल्डअप करने के लिए तीनों चीजें आप जो है ना वो स्टार्ट कर दें। तो ऐसा है या नहीं है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
के रजिस्टर्ड डाइटिशियंस कहलाती हैं, जो डाइटिशियंस हॉस्पिटल में काम कर रही होती हैं, तो वो उनसे आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो उनसे एक्सपेक्ट आप ये करें कि वो तकरीबन आपकी जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, उसमें 500 कैलोरीज और ऐड ऑन करेगी, और उसका टारगेट ये होगा कि वो 0.5 kg पर वीक वजन बढ़ाए, क्योंकि ये वजन जो बढ़ेगा वो कम नहीं होगा। ठीक है, जब हम एग्रेसिवली पेशेंट को न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं, ओरल, इंटेरल, पेरेंट्रल, तो क्या होता है शुरू के दिनों में आपको या वैसे भी आपको ये फील होता है पेशेंट ने वजन बढ़ाया है, लेकिन यूजुअली वो फ्लूइड बिल्डअप हो रहा होता है, इसलिए क्योंकि आप ओरली भी उसको खिला रहे हैं, इंटेरली भी फॉर्मूलाज जितने भी होते हैं उसमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है, पेरेंट्रली भी फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है, उसके अलावा वो आईवी फ्लूइड्स पे भी होते हैं। ये सब चीज़ें भर भर के जब हम दे रहे होते हैं तो लगता है वजन बढ़ा रहा है पेशेंट, जबकि वो हो सकता है फॉल्स वजन बढ़ा रहा हो। ऐसा ना हो, जो एक्चुअल वेट गेन होता है ना, जो अच्छा वेट गेन हम जिसको कहेंगे, जो कि स्टे करेगा बॉडी के अंदर, वो ये होता है कि हम 0.5 kg के वजन को टारगेट बनाते हैं, और उसके लिए हमें 500 कैलोरीज प्लस करनी होती हैं। ठीक है, अगर आपका टारगेट ज्यादा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आइडियली ये है कि 0.5 kg वजन पर वीक बढ़े। ठीक है। अच्छा, कभी कभी जो है वो डाइटिशियंस हेजिटेट हो रही होती हैं कैलोरीज वगैरह बढ़ाने में, उसकी जो एक वजह है वो ये है कि पेशेंट को जब हम इवेलुएट करते हैं तो हमें लगता है कि वो रीफीडिंग सिंड्रोम में जा रहा है। रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है? ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऐसी एग्रेसिव न्यूट्रिशनल बिल्डअप का, जिसके बाद इन दी एंड अगर नहीं उसको प्रॉपरली देखा जाए, किया जाए, तो वो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जाती हैं, लाइक हाइपोकैलीमिया हो जाता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाता है, हाइपोमैग्नीशिया हो जाता है, मतलब मैग्नीशियम लेवल्स भी गए, फास्फोरस लेवल्स भी गए, पोटेशियम भी गया। तो एज अ क्लिनिशियन यू नो कि अगर ऐसी चीजें होंगी तो क्या होगा। ऊपर से फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, लेकिन ये यूजुअली उन पेशेंट्स में होता है जो कि अंडरवेट होते हैं या मैलनरिश्ड होते हैं। ठीक है, अगर आपका ऐसा पेशेंट नहीं है और तब आपने वेट गेन कराना, तब तो आपको वैसे भी इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि आप इतना एग्रेसिव न्यूट्रिशन नहीं चलें। ज़ाहिर है उन्हीं पेशेंट्स को ज़रूरत होती है जो कि वाकई आपके वेट गेन के कैंडिडेट होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में अगर आप ज़्यादा कैलोरीज बढ़ा देंगे, ज़्यादा प्रोटीन बढ़ा देंगे, एकदम से एग्रेसिव न्यूट्रिशन देंगे, तो वो रिफीडिंग सिंड्रोम में जा सकता है। उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से पेशेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। अगर पेशेंट में इस तरह की कोई भी लैब पैरामीटर्स देखी जाएं जिसमें उनका फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम ड्रॉप होने लगे, तो हमें फॉर्न कैलोरीज जो हैं वो कम करनी होती हैं, और फिर उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और हमेशा ये याद रखें कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि एकदम भर भर के कैलोरीज दे दें, एकदम भर भर के न्यूट्रिशन दे दें और समझें कि पेशेंट का आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन आ जाता है कि एस्पिरेट किया है पेशेंट ने, किसी भी एंटाइरल फीड पे है और इसको एस्पिरेशन आई है, तो आप फीड को होल्ड कर दें या स्टॉप कर दें। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि स्टडी के थ्रू के किस तरीके से हमारे पास पेशेंट आता है, ताकि समझने में हमें आसानी हो। अच्छा, कंसल्ट की रीज़न क्या थी जो हमें मिली? वो ये थी कि रिव्यू कर लें कि एनजी फीड जो है वो कैस मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है। जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला, जब रजिस्टर्ड डाइटिशियन वहाँ गई तो उसको ये पता चला कि वाज इन्फॉर्म रिगार्डिंग ऑन एंड ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन बोल दें या जीआरवी बोल दें, गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम, उसका हाई अमाउंट आ रहा था। इसकी वजह से हमने आपको कॉल करके कहा है कि एनजी जो फीड उसको चल रही है उसको इवेलुएट करें। लेकिन जब हमने पेशेंट को रिव्यू किया तो हमें पता चला कि जो लास्ट 24 आवर्स थे उसके अंदर सिर्फ 2 उनके जो है रेजिडुअल वॉल्यूम्स आए, यानी कि 2 दफ़ा उनको एस्पिरेट आया है। ठीक है, 50 ml का और 150 ml का। ठीक है, फिर हमने देखा कि आया तो फिर क्या किया गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और फीड होल्ड कर दी गई कि अनटिल जब तक डाइटिशियन नहीं आएगी आप इसकी फीड होल्ड कर दें। ठीक है, 150 के बाद उन्होंने होल्ड कर दी। अच्छा,
उसके बाद हमने जब चेक किया मेडिकेशंस में कि भाई कोई चीज़ ऐसी स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है कि जो इसकी वजह से जीआरवी बढ़ रहा है या जीआरवी को कम करने के लिए कोई मेडिकेशन स्टार्ट की गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन प्रोकाइनेटिक्स भी स्टार्ट नहीं की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने और इवेल्युएट किया, डिग डाउन किया, तो पता चला कि पेशेंट की जो है वो सिडेटेड भी था, कॉन्स्टिपेटेड भी था और बेड रिडन भी था फॉर 3 days। ठीक है, तो क्या है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि चांसेस बढ़ा देती हैं आपका हाई गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए, यानी कि एस्पिरेट के चांसेस को बढ़ाता है। तो हमने क्या करना है, हम सेडेशन तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कॉन्स्टिपेशन को वो कर सकते हैं, रिलीव करवा सकते हैं। बेड रिडन अगर पेशेंट है तो उसकी फिजियो करवा सकते हैं और प्रोकाइनेटिक जैसे मैंने कहा वो स्टार्ट करा सकते हैं। ठीक है, और जब हमने इवेलुएट किया कि इसका अभी करंटली फीड प्लान क्या चल रहा था, तो उसका चल रहा था कि नॉर्मल स्टैंडर्ड जो वो होता है फॉर्मूला, वो चल रहा था पॉलीमेरिक फार्मूला 4 स्कूप्स इन 150 ml 4 hourly, जो कि एक एडवोकेट है, नॉर्मल कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपका कोई इतना फ्लूइड चल रहा हो कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हो। तो इसके क्या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, वो आपको इससे पता चल रहा है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि एस्पिरेट और गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम को क्या हमने देखना है। तो इससे सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम्स हैं वो आर द पुअर प्रेडिक्टर ऑफ एस्पिरेशंस। अगर आपको ये लग रहा है कि पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा, ठीक है, तो वो पुअर प्रेडिक्टर है, ऐसा नहीं होता। अगर जीआरवी ज़्यादा आ रहा है, गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा है पेशेंट का, तो आप उसके लिए प्रोकाइनेटिक्स यूज़ करें, आप उसकी जो रूट कॉज है उसको सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा, एस्पिरेट को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हमेशा याद रखेंगे एस्पिरेशन इज व्हेन समथिंग इज swallow गोज डाउन द रॉन्ग वे एंड एंटर्स एयरवे और लंग्स। ठीक है, तो हाई गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम जब हम चेक करते हैं, जो एस्पिरेशंस आती हैं वो बेसिकली जीआरवीज को चेक करने के लिए आ रही होती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो निकल के एयरवे और लंग्स में चली जाए। ठीक है, इसलिए ये पुअर प्रेडिक्टर है ऑफ एस्पिरेशंस। अच्छा, gastric residual volume is the amount aspirated from the stomach following administration of enteral feed। ठीक है, अगर आपने फीड कराई है तो 4 घंटे के बाद यूजुअली या 6 घंटे के बाद एस्पिरेट चेक कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरिंज के भाई कितना एस्पिरेट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मीन ज़बरदस्त, अगर आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें प्रैक्टिस जो यूजुअली होती है वो ये होती है, जो एस्पिरेट चेक किया जाता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसा ना करें, इसलिए क्योंकि जो आपका वो है एस्पिरेट है जो आया है सिरिंज के अंदर, उसके ऊपर आपके गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक जितने भी जूसेस हैं, उन्होंने काम किया हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप उसको वापस जो है फीड को वापस एस्पिरेट जो निकाला है वो वापस कर दें। लेकिन अगर वो एयर के साथ उसका कंटेमिनेशन हो चुकी है, ठीक है, आपने सिरिंज निकाल के चेक कर लिया एंड देन आप वापस लगा रहे हैं, ऐसे नहीं करें। आप उसी वक्त चेक करें, आपको लगे वॉल्यूम है 20 ml 50 ml 30 ml, आप वापस डाल दें और नेक्स्ट जो फीड होगी उसमें से 30 या 50 ml माइनस करके वो वाली फीड इसको दे दें। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे कर लेते हैं कि एक पेशेंट था जिसको आपने 200 ml फीड करवाई और 4 घंटे के बाद आपकी नेक्स्ट फीडिंग का टाइम आया और जब आपने चेक किया तो उसमें 50 ml का एस्पिरेट आया था। 50 ml वापस अंदर करेंगे और जो नेक्स्ट 200 है उसमें से 150 दे देंगे, क्योंकि 50 ml ऑलरेडी उसकी बॉडी में मौजूद है। ठीक है, तो कहते क्या हैं, जो हमारा थ्रेशोल्ड है ना, जो कि गाइडलाइंस कहती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर 500 से ग्रेटर आए पूरे दिन में तो फिर आप फीड को होल्ड करेंगे या स्टॉप करेंगे, ताकि आप ये चेक कर सकें कि आखिर मसला क्या है। लेकिन यूजुअली जो पाकिस्तान है उसके अंदर क्या है कि 150 ml 50 ml 120 ml 100 ml का भी एस्पिरेट आता है, उसी वक्त फीड होल्ड हो जाती है और उसके रूट कॉज नहीं देखा जाता कि आखिर क्यों जो है इसको रोका जा रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन रीजंस हैं जो कि जीआरवीज के होते हैं कि कौन कौन से रीजंस की वजह से होता है, उसमें सबसे पहले तो सिडेशन है। अगर सिडेटेड पेशेंट है तो उनकी जो गट मोटिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो उनके जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज मूवमेंट है, पेशेंट कॉन्शियस है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, बेड रिडन है। ओल्ड एज पेशेंट्स में यूजुअली एंटेरल फीट चल रही होती हैं और वो उनकी मूवमेंट डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह से उनको जीआरवीज जो है वो आ जाता है, हाई जीआरवी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी ट्यूब डिसलॉजमेंट, यानी कि ट्यूब सही जगह डली नहीं है, सही जगह से जो डली हुई थी वो हिल गई है।
ठीक है, तो उसकी वजह से भी GRVs जो हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं, सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो कि स्लो डाउन कर देती हैं आपके डाइजेशन के प्रोसेस को, तो वो मेडिकेशंस भी, या कॉन्स्टिपेशन करा देती हैं, तो वो मेडिकेशंस को भी इवेलुएट करना ज़रूरी है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर आपको लेक्सेटिव्स देने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा गट मोटिलिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन जो कि रिलेटेड हो सकता है बाकी चीज़ों से, या कम मूवमेंट हुई तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, मेडिकेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया, किसी और वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसमें भी आपका जो है वो GRVs जो है वो हाई हो सकते हैं। फिर आ जाता है इनकरेक्ट पोजीशनिंग। कभी-कभी ऐसा होता है कि एनजी जब पास होती है, यूजुअली एनजी में होता है ये मसला कि एनजी जब हम पास करते हैं तो हम ये नहीं चेक करते कि वो वाक़ई एक्स-रे के थ्रू चेक करना चाहिए, गाइडलाइंस ये कहती हैं। एक्स-रे के थ्रू आपको ये चेक करना चाहिए कि वो वाक़ई वो सही जगह पे गई है, वो कहीं लंग्स में तो नहीं चली गई, क्योंकि वो नोज़ से जाती है तो वो लंग्स में भी जा सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है या उसका जो है वो सही फीड नहीं जाएगी, तो ये चांसेस हैं। तो इसको प्लीज़ ज़रूर चेक करें कि पोजीशनिंग उसकी सही हो जब आप एनजी डाल रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन आ जाता है जो कि है मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स कैन रिप्लेस्ड बाय डाइट। अच्छा, यूजुअली क्लिनिशियंस ये समझते हैं कि हमने डाइटिशियन के पास भेजा है तो वो डाइट ऐसी बता देंगे जिससे उनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो डाइट कैन प्रिवेंट डेफिशिएंसी बट कैन नॉट ट्रीट। ठीक है, किसी भी चीज़ की, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कम हो रहा है, मैग्नीशियम कम हो रहा है, या पोटेशियम कम हो रहा है, या उसको B12 की कमी हो गई है, या उसको आयरन की कमी हो गई है और उसकी वजह से उसको एनीमिक हो गया है, तो ये समझें कि उसको हम हाई आयरन डाइट पे रख देंगे, आयरन रिच डाइट पे रख देंगे तो वो प्रिवेंट करेगा, वो जो है ट्रीट कर देगा, तो ट्रीट नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रिवेंट कर सकता है। तो ऐसा क्यों है? लेट्स टेक डाउन द रीजंस। तो जो अमाउंट आपका फूड में मौजूद है विटामिन्स एंड मिनरल्स का, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता कि वो डेफिशिएंसीज को जो है वो करें, रिप्लेस करें। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल सिनारियो देख लेते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ आया कि फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया उसको। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉलेट कितना था उसका अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस 200 था। रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ फॉलेट अगर हमने उसको दी, ठीक है, जो कि रिचेस्ट हैं, उसमें लेंटिल्स हैं, होल मील ब्रेड है, पीनट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, स्पिनच है, उसकी इतनी इतनी सर्विंग्स हमने पर डे दी तो उसमें इतना इतना फॉलेट उसको गया, जो कि टोटल बनाता है आपका 257, जो कि रिक्वायर्ड फॉलेट से ज़्यादा ही है। ठीक है, उसने इतनी अमाउंट में लिया तो उसको इतना फॉलेट जा रहा है, तो क्या इससे हमारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ एक और चीज़ कही जाती है, वो है बायो अवेलेबिलिटी। द अमाउंट ऑफ अ गिवन न्यूट्रिएंट इन फूड, medications and supplements that are absorbed in the intestines and ultimately available for biological activity in your cells and tissues। यानी कि जो चीज़ आपने खाई है ज़रूरी नहीं है वो 100% एब्जॉर्ब हो जाए या 100% अवेलेबल हो जाए। इसमें इसी फॉलेट की एग्जांपल ले लेते हैं कि विटामिन हमारे पास है फॉलेट, ठीक है, और इसकी फूड में कितनी बायोअवेलेबिलिटी है, कितने परसेंट वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, 50%, यानी कि जो पीछे हमने स्लाइड में देखा था 257 उसका हाफ हो जाएगा, इतने परसेंट वो अवेलेबल होगा, बाकी नहीं अवेलेबल होगा, उसका कोई फायदा नहीं है, और वो क्या हो जाएगा, वो टारगेट रेंज से कम हो जाएगा। उसके अलावा बायोअवेलेबिलिटी अगर हम सप्लीमेंट की देखें कि सप्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं तो उससे कितनी बायोअवेलेबिलिटी होगी, 100% होगी अगर खाने के बगैर लिया जाए, और 85% होगी अगर हम खाने के साथ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट भी 100% बायो अवेलेबल होते हैं, उनकी टाइमिंग्स भी मैटर करती हैं और उनको किस चीज़ के साथ लिया जा रहा है वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को फोकस करते हुए करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी डाइट है वो सिर्फ प्रिवेंट कर सकती है डेफिशिएंसी से, ट्रीट नहीं। वंस आपने ट्रीट कर दिया उसको विद सप्लीमेंट्स, उसके बाद आप इतनी डाइट दे दें कि वो उससे उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है मिसकंसेप्शन, एक्स्ट्रा प्रोटीन बिल्ड्स मोर मसल। पेशेंट एडमिट हुआ, ये पेशेंट आपके पास ओपीडी में आया है और आपको लगता है इसको मसल मास इसका कम है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो भाई धड़ाधड़ प्रोटीन चला दें इसको, प्रोटीन तो जाना ही चाहिए। तो इसकी तरफ देख लेते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स क्या क्या है। नॉर्मली हर पेशेंट को जो कि
CKD के अलावा नॉर्मली हर पेशेंट को 0.8 to 1 ग्राम तो देना ही देना होता है। कुछ पेशेंट्स हैं जो कि ट्रॉमा के हैं, बर्न्स के हैं या प्रेशर अल्सर्स के हैं, उनको या डायलिसिस पेशेंट हैं, उन लोगों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उनकी बढ़ने के बाद भी कितनी देनी है आपने, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो अगर हम ये देखें कि एक हमारी डाइट है उसमें कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास तीन ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इन तीन चीज़ों से मिलकर आपकी एक जो है वो मील बनता है या डाइट बनती है या कंपोनेंट बनता है। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 50 to 55% हम ये कहते हैं कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 15 to 20% प्रोटीन होना चाहिए एंड 25 to 30% फैट होना चाहिए। इन सबको मिला के हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए जो कि हेल्दी है। एग्जाम्पल सिनेरियो देख लेते हैं। 67 kg मेल है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको 30 कैलोरीज पर केजी चलें और 1.5 ग्राम्स पर केजी पर डे प्रोटीन मिले। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स निकली उसके हिसाब से उसको 2000 कैलोरीज पर डे जानी है। कार्बोहाइड्रेट 55% देखेंगे तो 275 ग्राम्स जाना है। प्रोटीन 20% अगर मैक्सिमम रेंज में देते हैं तो 100 ग्राम्स जाना चाहिए। फैट 25%। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम इसी परसेंटेजेस को आगे पीछे कर देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है वो कम हो जाए, प्रोटीन जो है वो 30 to 40% हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी जब आप प्रोटीन देंगे उसको, चाहे वो आप ओरली दे रहे हो, इंटायरली दे रहे हो, पेरेंटली दे रहे हो, तो क्या मसला हो जाएगा कि जो प्रोटीन आपको मसल बनाने के लिए चाहिए था वो प्रोटीन आपकी कैलोरीज बना रहा होगा। ठीक है, तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा, वो टर्न क्या हो जाएगा, वो कैलोरीज में, कैलोरीज की नीड ज़्यादा थी उसकी 2000, आपने कार्बोहाइड्रेट फैट कम कर दिया, प्रोटीन बढ़ा दिया। क्या हुआ, जो जितनी उसको कैलोरीज चाहिए थी कार्बोहाइड्रेट और फैट से, वो प्रोटीन से लेना शुरू करेगा। ठीक है, तो अगर आपने पेशेंट को एनाबॉलिज्म में रखना है, आपने ये सोचा है कि हमारा पेशेंट जितना भी प्रोटीन ले रहा है वो परफेक्टली इसकी बॉडी में जाए, तो आप इस परसेंटेज में अगर रहेंगे तो उसकी बॉडी उस प्रोटीन को अपने प्रोटीन के काम में ही यूज़ करेगी, वो कैलोरीज में यूज़ नहीं करेगी। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक्सेसिव प्रोटीन देने से क्या होगा, अगर पेशेंट ओरल ले रहा है तो फैट भी ज़्यादा होता है, जो प्रोटीन कंटेनिंग चीज़ें होंगी जिससे हमने पहले डिस्कस किया। मिल्क में भी फैट है, आपका जो वो है गोश्त वगैरह है उसमें भी फैट है, अंडे में भी फैट है। तो ये चीज़ें अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ाएंगे तो फैट भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि एक्सेसिव प्रोटीन बढ़ा दें और पानी की इनटेक कम रखें तो किडनी स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं इन पेशेंट में। ठीक है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो एफिशिएंटली यूज़ नहीं होता, बल्कि वो बर्डन बनता है आपकी बोन, किडनीज और लिवर के ऊपर। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स एंड परहैप्स किडनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, लाइक अगर आपने बहुत ज़्यादा एक लिवर डिजीज़ का पेशेंट है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन दे दिया, उसका यूरिन आउटपुट भी नहीं आ रहा, उसको स्टूल भी पास नहीं हो रहा, वो हेपेटिक इनकैफ में जा सकता है। उसके अलावा किडनी जो है वो प्रॉब्लम्स में आ सकती है अगर प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हो जाए। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि टाइम जो है वो चाहिए होगा बिल्डअप करने के लिए। अकेला सिर्फ हाई प्रोटीन कर देने से डाइट अगर आप परसेंटेज भी उसकी आगे पीछे कर दें, ऊपर से उसको जो है ये सोचें फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन कम हो जाता है पेशेंट का या टोटल प्रोटीन कम आ रहा होता है, इसको एक्सेसिव प्रोटीन चला देते हैं। एक्सेसिव प्रोटीन से कुछ नहीं होगा, वो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में हो जाएगा, यानी कि वो कैलोरीज प्रोवाइड करने लग जाएगा। तो इनफ कैलोरीज दें फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और एक जो है ये था मुझे मिली थी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि तकरीबन 1.5% जो पर डे मसल मास जो है वो लॉस हो रहा होता है हर पेशेंट का, चाहे उसको आप जितना भी प्रोटीन देते हैं, जो कि कंप्लीट बेड रेस्ट पे हो। ठीक है, और उसको रिकंडीशन करने में यानी कि दोबारा रीगेन करने के लिए कम से कम 2 वीक्स चाहिए होते हैं। अगर किसी पेशेंट का एल्ब्यूमिन कम आ रहा है या उसका टोटल प्रोटीन कम है और आप चाह रहे हैं कि उसको प्रोटीन धड़ाधड़ हम दे दें, 200 ग्राम दे दें, 150 ग्राम दे दें, तो उसको देने से कुछ नहीं होगा। आपको पता चल गया कि क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि उसको रिजल्ट आने में भी 2 हफ्ते लगेंगे कम से कम। ठीक है, तो टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज नेवर टू गुड। हाई प्रोटीन डाइट नेसेसरी है कुछ सेवरल पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि मैलन्यूट्रिशन हो गया, सार्कोपीनिया हो गया, इन सब में ज़रूरी है, लेकिन टू मच ऑफ अ गुड थिंग इन डाइट कुड बी यूजलेस और इवन हार्मफुल। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। अच्छा, नेक्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन आ जाएगा, वो है ऑलिव ऑयल इज ऑल माय पेशेंट नीड्स।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ आजकल बहुत कॉमन है, पेशेंट भी यही आके सवाल करता है, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑयल। सब सारे ऑयल छोड़ दो, सिर्फ ऑलिव ऑयल, सिर्फ ऑलिव ऑयल, सिर्फ ऑलिव ऑयल, इसमें खाना पकाओ। और कुछ लोग ये कहते हैं इसमें खाना ना पकाओ, इसको सैलेड के फॉर्म में लो, बस यही लेना है आपने, यही जिंदगी का तेल है और कोई तेल नहीं यूज करना आपने। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कितने डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ऑलिव ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वर्जिन ऑलिव ऑयल है, रिफाइंड ऑलिव ऑयल है, ऑलिव पोमेस ऑयल है, और लास्ट लैम्पेंटी ऑयल है। ठीक है, तो इसमें जो 5 ऑलिव ऑयल हैं, उसमें से शुरू के जो 2 हैं वो समझे जाते हैं कि वो कुकिंग में और कंज्यूम करने के लिए हेल्दी है। रिफाइंड मीडियम है, यूज करना हो कभी तो कर लें, लेकिन कोशिश करें इसको सैलड ड्रेसिंग वगैरह के लिए ही रखें। बाकी लास्ट के दोनों जो ऑप्शंस हैं वो आपके एडिबल अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मिसकंसेप्शन ऑलिव ऑयल में सबसे पहले जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि ऑलिव ऑयल जो है वो उसमें कैलोरीज कम होती हैं। ठीक है, इसीलिए जूस में भी डाल के मतलब आप फ्राई भी कर लो उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जितने भी ऑयल हैं, चाहे वो कैनोला हो, ऑलिव हो, कोई भी ऑयल हो, अगर वो सेम क्वांटिटी में लिया जाएगा तो सेम नंबर ऑफ कैलोरीज देगा। ठीक है, उसका सिर्फ न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज है, इस वजह से वो हेल्दी समझा जाता है। ठीक है, और सिर्फ इसको ही हेल्दी नहीं समझा जाता, तो और भी ऑयल्स हैं जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिकमेंड किए हैं, जो कि मैं आगे अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके अलावा ये है कि व्हेन यू हीट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इट लूजेस इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, इट शुड ओनली बी यूज्ड रॉ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से कुक कर सकते हैं। अच्छा, बात आ जाती है देर तक पकाने की खाने को और फ्राई करने की। ये 2 चीजें हैं जो कि पाकिस्तानी खाने में बहुत ज्यादा होती हैं, जो कि हेल्दी चीज है ही नहीं। आप जितना कम पकाएंगे उतना उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें रहेगी। हाई हीट और लॉन्ग टाइम हीट पे रहने से नेचुरली जो अक्रिंग उसमें मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप फ्राई करते हैं तो फ्राइंग इज़ नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। ठीक है, उसको तो आप भूल ही जाएं, वो तो एक हेल्दी डाइट का पार्ट ही नहीं है कि आप एक फ्राइंग के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ऑलिव ऑयल हो, पानी हो, जिसमें भी करें, फ्राइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने कहा था अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ ऑयल्स रिकमेंड किए हैं, तो उसमें कैनोला, कॉर्न, ऑलिव, पीनट, सेफ्लॉर, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब ऑयल्स इक्वली अच्छे हैं। आप इन सब को खानों में डॉक्टर बता सकते हैं पेशेंट्स को कि ये सब ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन करना क्या है कि क्वांटिटी में रह के करना है। ठीक है, क्वांटिटी में रह के नहीं करेंगे, क्वांटिटी से बढ़ जाएंगे तो कोई भी ऑयल हो, चाहे वो ऑलिव ही क्यों ना हो, वो डेंजरस है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर पेशेंट कोई पूछता है आपसे कि भाई कौन सा तेल इस्तेमाल करें, आप कहें कि भाई बीज वाले, सब्जी वाले तेल इस्तेमाल करें, जिनमें कैनोला, कॉर्न, ऑलिव, सनफ्लावर, सोयाबीन, ये सब मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन आ जाता है, लास्ट मिसकंसेप्शन, दैट इज न्यूट्रिशन काउंसलिंग कैन बी डन बाय एनी मेडिकल स्टाफ। ठीक है, आउटकम भी चाहिए, पेशेंट के मैलनरिश्ड हो गया है तो और अच्छा आउटकम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी जाके पेशेंट को काउंसिल कर सकता है न्यूट्रिशनली। तो व्हाट वी नीड टू नो इज कि हमारे पास 2 ही डोमेन्स हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, जो कि पेशेंट से इंटरेक्ट सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं, और न्यूट्रिशनली उनको प्लानिंग या न्यूट्रिशनली केयर जो उनको चाहिए वो बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं बता सकते, डॉक्टर्स आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, वो ही डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को सॉफ्ट डाइट जाएगी, रेगुलर डाइट जाएगी, डायबिटिक डाइट जाएगी, इसको किस चीज़ की कमी हो रही है, क्या चीज़ करनी है, लेकिन वो कैसे करनी है वो डाइटिशियन का डोमेन है। ठीक है, वो डाइटिशियन ही बता सकती है। तो क्यों डॉक्टर्स के लिए मसला होता है? डॉक्टर्स के लिए यूजुअली इसलिए मसला होता है क्योंकि वो एमबीबीएस या कोई भी जो डिग्री होती है उनकी, उसके अंदर वो लोग न्यूट्रिशन को एज अ कोर्स भी नहीं, एज अ समझें कि सब्जेक्ट लाइक पढ़ते हैं कि हाँ भाई एक बुक है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आ गया न्यूट्रिशन का, उसको पढ़ लिया, तो लिमिटेड नॉलेज होती है। उसके अलावा उनका क्योंकि वो फोकस नहीं होता और इमर्जिंग है, न्यूट्रिशन एक ऐसा डोमेन है जो इमर्जिंग है, रिसर्च के साथ चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ होती है। दूसरी बात, इतना टाइम नहीं होता डॉक्टर के पास कि वो अपने लिमिटेड टाइम में उसको डिटेल काउंसलिंग कर सकें। ठीक है, तो इसलिए आज की प्रेजेंटेशन का मकसद भी सिर्फ यही था कि हम वो नॉर्मल जो मिसकंसेप्शंस हैं या मिथ्स हैं उनको
ब्रेक करें, ताकि जो कॉमनली एडवाइस कर दिए जाते हैं या पेशेंट सवाल लेकर आ जाते हैं उनको ब्रेक किया जा सके और उनको हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ ला सकें। ठीक है, उसके अलावा ये है कि अगर पर्सनलाइज उनको न्यूट्रिशन प्लान चाहिए, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल आपको दी, अंडे की एग्जांपल दी, दूध की एग्जांपल दी, उसके अलावा फॉस्फोरस वगैरह की एग्जांपल दी, प्रोटीन की एग्जांपल दी, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि एक डाइटिशियन एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम वो लोग पढ़ते हैं और वो पर्सनली बना सकते हैं। फोलेट अगर डेफिशिएंसी के साथ आएगा, हमारे पास बहुत मिथ्स हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि इस चीज़ में फोलेट ज़्यादा होता है, आयरन जो है वो इन चीज़ों में ज़्यादा होता है। वो हमारे जो नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं उसमें डिस्कस भी होगा कि क्या-क्या हैं चीज़ें इस तरह की, तो वो चीज़ों में हम बता देते हैं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि डाइटिशियन की टीम आपके हॉस्पिटल में या आपके जो ओपीडीज़ कर रहे हैं उसमें हो, ताकि वो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान पे अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ पेशेंट को दे सकें। व्हाट आर द मेन मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जो कि प्रोवाइड करती है रजिस्टर्ड डाइटिशियन? उसमें सबसे पहले तो ये है कि वो रिव्यू करती है पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स को, लाइफ़स्टाइल को, और वो जब रिव्यू कर लेती है उसी हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई करती है। एक चीज़ से हर चीज़ नहीं हो सकती, एक डंडी से आप हर चीज़ नहीं चला सकते, आपको हर पेशेंट के लिए टेलर मेड चीज़ें बतानी पड़ेंगी। उसके अलावा पूरा असेसमेंट करती है न्यूट्रिशनल स्टेटस का एंड देन पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट प्लान देती है एज़ पर पेशेंट। ठीक है? तो ज़रूरी है कि अगर डाइटिशियंस जो हैं अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ यूज़ करें, तो हमारे जो मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो हम कई हद तक सॉल्व कर सकते हैं। दीज़ आर माय रेफरेंसेस जो कि मैंने यूज़ किए हैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाने में। बाकी अगर किसी को कोई भी रेफरेंस वगैरह चाहिए हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। आई होप मैंने काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस जो हैं वो क्लियर कर दिए हों और काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया हो कि क्या-क्या मिसकंसेप्ट्स हमारे क्लिनिशियंस के माइंड में होते हैं या कॉमनली पेशेंट्स के माइंड में होते हैं, उनको हम किस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन फ्यूचर एज़ वेल, और अभी भी हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे तो उसमें किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी डिटेल सवाल पूछना हो, कोई डिस्कशन करनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। So much, Ms. Yumna Sadek, for clearing the air for different nutrition related misconceptions. I hope you all are clear till now. If you have any queries related to this session, you can drop your questions in the QA box and we can answer them accordingly in the end of the session. So now I would like to invite Ms. Misbah Kamran to present identifying nutrition myths among clinicians. Ms. Misbah Kamran is a registered dietitian by Pakistan Nutrition and Dietetics Society and currently working as a clinical nutritionist. She has plus 14 years of experience in the field of nutrition. She has been associated with Indus Hospital and Health Network since 2017 and strives to establish best quality food practices and deliver nutrition care awareness. Over to you, Ms. Misbah Kamran. Assalamu alaikum and good morning. My name is Misbah Kamran and I'm here to present my presentation on identifying nutrition myths among clinicians. And I have been associated with Indus Hospital since 2017 and it's been an honor to work with the organization. Okay, so let's begin. Disclosure, I don't have any financial interest arrangements or affiliation with one or more organizations that could be perceived as a real or apparent conflict of interest in the context of the subject of this presentation. Objectives of my presentation are to discuss common myths among clinicians regarding nutrition, to break the myths that hinder patient care with current evidence-based guidelines and research. Okay, so now our first myth we are going to talk about is albumin is an indicator of malnutrition. Okay, so albumin, we all know what albumin is, okay, a very important part of our body, and it's actually associated in the past few years as malnourishment or nourishment factor. But what actually happens, okay, the factors which affect serum albumin levels, albumin is actually increased in dehydration, blood transfusions, and exogenous albumin, okay, and it's decreased in overhydration, hepatic failure, inflammation, infection, metabolic stress, post-operative
कंडीशंस, बेड रेस्ट, प्रेगनेंसी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हमारे पास अक्सर जो है हमारे पास कंसल्ट्स आती हैं, स्पेशली द फैकल्टीज विच आर डीलिंग विद द सर्जरी, तो वो हमें कहते हैं कि पेशेंट का एल्ब्यूमिन कम है एंड वी नीड टू बिल्ड हिम अप और बिल्ड हर अप। तो इनका एल्ब्यूमिन इनका डिक्रीज आ रहा है, तो प्लीज आप लोग आके इसको देख लीजिए। सो आज हम इसी मिथ को ब्रेक कर रहे हैं कि एल्ब्यूमिन इज नो लॉन्गर और प्री एल्ब्यूमिन इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड as a malnourishment factor or nourishment factor because it can increase or it can decrease accordingly. Okay, like for example अगर एक healthy individual है और उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो बॉडी है वो आपकी इन्फ्लेमेशन में होगी, वो सेप्सिस के अंदर होगी, वो कैटाबॉलिक स्टेट में होगी, तो एल्ब्यूमिन उसका डिक्रीज ही आएगा regardless what the nutrition status of the patient is. Okay, because it reflects the severity of illness and it is treated as an inflammatory markers for stress and mortality and decreased with acute or chronic disease or overhydration. अगर patient कोई बहुत ज़्यादा overhydrated है तब भी ये decrease हो जाएगा. So you are going to identify that whether the patient is well hydrated or dehydrated. Okay, so albumin and pre-albumin aren't taken malnutrition markers. Okay, and they are going to be considered as they are the risk factors actually rather than malnutrition assessment. Okay, and the two what research evidence suggests like it's totally ongoing और अभी भी जारी है, इनके ऊपर researches अभी भी जारी हैं, but two major clinical trials conduct हुए थे और उन्होंने albumin को compare किया था as a volume expander in the management of circulatory shock, लेकिन there was no any kind of significant results in the increase of albumin. Okay, so what we actually need to focus on how we are going to assess the malnourishment or nourishment status of a patient. These are the tools of nutrition assessment and monitoring efficacy. We are going to see the weight changes and monitoring. Okay, we are going to see the patient's weight and we are going to monitor him that whether what nutrition therapy we are commencing to the patient उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, plus the underlying disease severity. Okay, उसकी disease severity कैसी है, उसके prognosis कैसे हैं. Then physical examination. इसमें मैं आपको बताती चलूं कि फिजिकल एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी फ्रॉम द न्यूट्रिशन कंटेंट, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन. It's called NFPE. Okay, so what it's going to see, the appearance of the body. We are going to see the color of the eyes. We are going to assess the hands अमाउंट कितना मौजूद है, उसके अंदर खून कितना है, ये हम उस चीज को असेस करेंगे. प्लस वी आर गोइंग टू सी द नेल्स, वी आर गोइंग टू सी द हेयर. अगर पेशेंट सिवियरली मैलनरिश्ड होगा तो अगर आप देखें ये हमारे असेसमेंट का पार्ट होता है कि अगर हम पेशेंट के हेयर्स को, मतलब अगर हम उसका एक स्ट्रैंड को अगर हम प्लक करते हैं तो इट कैन इजीली कम आउट. ओके, तो जिससे आप ये असेस कर सकते हैं कि वेदर the protein is enough in the body or it's declined in declined state. Okay, now the functional capacity आपका ये बताती है कि पेशेंट का लाइक उसके जो पल्मोनरी उसका फंक्शन, उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं. ठीक है, पेशेंट लेथार्जिक तो नहीं होता, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो उस मतलब वो किस फंक्शनल क्लास पे है, वेदर ही इज एबल टू स्टैंड ऑन वॉक या वो व्हील चेयर पे रहता है, तो इस चीज को हमें जो है मॉनिटर करना होगा. देन द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, दैट हाउ द पेशेंट, उसके जीआई फंक्शंस कैसे हैं, उससे हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट कि लाइक पेशेंट का इनटेक जो है वो किस तरफ जा रहा है. ठीक है ना, अगर उसका अच्छा इनटेक होता है तो ऑब्वियसली द पेशेंट जीआई सिस्टम विल बी ग्रेट. ओके, बिकॉज इट हैज द अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स इन द बॉडी जो आपके बॉडी को सेव कर रहे होते हैं, आपके इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहे होते हैं. सो दीज आर द न्यू टूल्स ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग एफिकेसी. हमें इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कंपैरेटिवली फ्रॉम एल्ब्यूमिन एंड प्री एल्ब्यूमिन. Okay, so moving towards next myth. Okay, this is our myth number 2, that is stop roti and rice for weight loss. But why? क्यों हमें क्यों बंद करनी है?
like who has suggested. Okay, what actually rice and chapati contains, आज हम इसको clear करेंगे. Okay, with nutrient evidence. ठीक है, if you're going to see the chapati and rice macronutrient contents, if you're going to see the 1/3 cup of serving rice, it's providing approximately 80 kilocalories with 1 gram of protein and 0.1 gram of fat and 18 grams of carbohydrate. Okay, and if you're going to see the small chapati, it's providing 71 kilocalories, 3 gram of protein and 0.4 gram of fat with 15 grams of carbohydrate. Plus fiber is also there. Okay, जिसको हमें encourage करना है, हमें बताना है कि आपने, क्योंकि हमारे पास कभी क्लिनिशियंस आते हैं एंड दे आस्क अस के हमें वेट लॉस करना है, एंड व्हेन वी एक्चुअली आस्क देम कि आपने भी क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं, तो हम जब सुनते हैं कि दे हैव टोटली स्टॉप टेकिंग रोटी एंड राइस, तो इट्स it's a very like weird and wonder situation कि हम लोग देखते हैं कि why you have actually stopped it, because they are the staple foods, they are the macronutrients components जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. If you see, they are abundant of minerals and vitamins जो आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए आपके रिक्वायर्ड होते हैं. तो kindly do not halt rice and chapati if you are on weight loss. What you actually need to do, it's the staple food of the country. ठीक है ना, 60% हमारी डाइट इसके ऊपर मतलब हम इसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, ये हमारे मेजर फूड सोर्सेज हैं. ठीक है ना, विच वी एक्चुअली ईट. ठीक है, एंड आपने क्या करना है, यू हैव टू मॉडिफाई द फूड आइटम. आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सेलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आपको जो है वो सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मिलेगा. यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द maximum number of nutrients, you're not going to receive the maximum number of विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर. सो हमें सिलेक्शन अपना ऐसा करना है फूड का कि जिसमें आपके पास फाइबर कंटेंट भी आए, आपके पास मल्टीविटामिन्स न्यूट्रिएंट्स आपके पास मौजूद हो टू सपोर्ट योर बॉडी सिस्टम. Okay, so this is like refined flour chapati, and you are going to switch it to whole wheat chapati, which is quite great in terms of every manner for weight loss, for supporting your health system. Okay, now what the research evidence has said, that low carb diets may not be healthy in the long run. Studies से ये जो है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी में एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी, उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि लो कार्ब डाइट्स अगर आप लेते हैं तो वो कोई इतनी इफेक्टिव नहीं है. प्लस उन्होंने ये भी बताया है कि हम जितनी भी लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लेते हैं अपनी मील के अंदर, इट्स एक्चुअली कन्विंसिंग प्रीमेच्योर डेथ्स ओवर टाइम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है और उसने सडनली सारी चीजें लेनी बंद कर दी हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसको जो है लाइक सीवीडी शॉक के अंदर उसकी डेथ हो सकती है. तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम अपना फूड सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर करें, उसमें देखें कि हमने क्या सिलेक्ट किया है और क्या सिलेक्ट नहीं करना है. प्लस जो इस तरह से लो कार्ब डाइट के ऊपर जा रहे हैं उनके शुगर लेवल्स भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहे हैं. एंड वी ऑल नो कि जब हमारे शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा हमारा कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा होता है, दैट्स एक्चुअली हार्ट. तो अगर हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स भी आते हैं तो हम उनको भी सारी चीजें मॉडिफाई करके बता रहे होते हैं. तो वेट लॉस तो एक ऐसी चीज है जो कि आसानी से हो सकती है, एंड यू डोंट नीड टू कट डाउन योर द स्टेपल फूड्स ऑफ योर फूड कि आपने उनको बंद कर दिया एंड यू आर गोइंग टू रिसीव योर परफेक्ट बॉडी. ओके, ओके. Now our third myth is detoxification cleans out body toxins. इसका एक्चुअली आजकल क्वाइट ये एक ऑब्सेशन बन गया है, प्लस ये एक फैशन भी हो गया है टू कैरी आउट आपने अपने हाथ में लेना है डिटॉक्स वाटर. ओके, what actually happens, आप डिटॉक्स वाटर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपने फास्टिंग भी शुरू कर दी थी, बिकॉज इंटरनेट इज एवरीवेयर.
बहुत सारे आपको इंटरनेट पे रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको गिमिक्स मिलेंगे जो आपको बिल्कुल ये कहें कि इनकरेक्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो सफिशिएंट नहीं होगी, वो रिलाई नहीं करती है करंट एविडेंस प्रैक्टिस के ऊपर, उनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई। तो यू डोंट हैव टू फॉलो सच थिंग्स, ठीक है ना। अगर आपने फास्टिंग कर ली है, आप बिल्कुल आपने कुछ नहीं आपने लिया 3 दिन तक, वो आपकी बॉडी बिल्कुल एक स्टारवेशन स्टेट में चली जाएगी, जो कि और मजीद एक रिस्क फैक्टर उसके लिए पैदा हो जाएगा, ठीक है। प्लस बहुत ज्यादा आपको मार्केट में डिटॉक्स डाइट्स, ठीक है ना, डिटॉक्स सप्लीमेंट्स, बहुत आपको इस तरह के जो है ना हर्बल सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे मार्केट में, एंड यू नो पीपल यूज देम, आप वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो ओवरकम है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी कि वो आपकी किडनीज को डैमेज कर सकता है, ठीक है। आपकी किडनी बहुत ज्यादा उसमें जो है अबंडेंस में आपके पास जो है हर्बल विटामिन और मिनरल्स आ जाएंगी, यस देयर आर, लेकिन आपकी किडनी इतनी कैपेबल नहीं है, ठीक है ना, अंडरलाइंग आपको कॉज नहीं मालूम, और अगर आपकी वो किडनी डैमेज हो जाती है तो फिर यू आर गोइंग टू रश इन इमरजेंसी विद सीवियर डिहाइड्रेशन फैक्टर्स, क्योंकि वो लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहे होते हैं, ओके। एक वेल फेड बॉडी जो है वो उसको सस्टेन कर लेगी, उसको हैंडल कर लेगी, लेकिन ऑलरेडी जो पेशेंट मैलनरिश्ड है या जो इंडिविजुअल मैलनरिश्ड है, उसको नहीं पता कि मैं मैलनरिशमेंट की तरफ हूँ, एंड ही स्टार्टेड सम काइंड ऑफ लाइक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, तो उसके लिए मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, सिवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, सिवियर डायरिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो सकते हैं, तो उसको रिप्लेनिश करना एक क्रिटिकल टास्क हो जाता है। एंड यस वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी इस तरह से बनाई है कि हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी किडनीज, हमारी इंटेस्टाइन्स, ये 24/7 जो है वो वर्क कर रही होती हैं टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस एज मच एज पॉसिबल। सो अगर आप मतलब अगर आप एक कोई डिटॉक्स डाइट के ऊपर जाते हैं, यू आर एक्चुअली आप एक नेचुरल प्रोसेस को हिंडर कर रहे हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फोकस दैट व्हाट यू आर ईटिंग and what you are taking in your diet for weight loss. Okay, what Harvard Health publication says, detox diets procedures generally don't promote health. Instead of relying on so-called detox procedures, a healthful diet, adequate fluids, exercise, sleep, and medical checkups are recommended. अगर आपने अपने आप का weight loss करना है, तो वो भी यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने बैलेंस डाइट की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी है, कंपैरेटिवली स्विचिंग योरसेल्फ टू सम काइंड ऑफ by taking only fruits and vegetables, क्योंकि वो इतने बेनिफिशियल नहीं है। आपने बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है, आपने अपनी एक्टिविटी मेंटेन करनी है, आपने एडिक्वेट स्लीप लेनी है। These are the key factors towards healthy balanced life. Okay. सो ये हमें समझ में आ गई होगी, दिस इज दी सिंड्रेला's फेरी गॉड मदर, और उन्होंने क्या किया था कि आके उन्होंने जो है सिंड्रेला को जब वो उनके मतलब लाइक उनको प्रिंसेस बना दिया था, तो दिस एक्चुअली दिस डाइट, दैट कीटोजेनिक डाइट, ठीक है ना, इट्स अब मेरी नजर में इट्स लाइक अ बीबीडी बॉबडी बू स्ट्रेटेजी है कि यू जस्ट हैव टू आपने छड़ी चलानी है और आपको जो है एक फैट बॉडी से आपको एक फिट बॉडी मिल जाएगी। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, बट दैट्स टोटली ए मिथ, ठीक है, आपने ये फॉलो नहीं करना। ट्राई टू फोकस, अभी जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, समझाया है कि व्हाट्स एक्चुअली promoting, what's actually what are the key factors, तो आपने उनके ऊपर ध्यान देना है। Okay, keto diet and versus balanced diet. So कीटो डाइट एंड वर्सेस बैलेंस डाइट, वी ऑल नो कीटोजेनिक डाइट जो है वो किसके लिए डिजाइन की गई है, वो हमें पता है कि वो एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए, जिनको सीजर्स के एपिसोड होते हैं, उनके लिए डिजाइन की गई है, विच कंटेन्स 90% ऑफ फैट, 6 grams of protein and 4% of carbohydrates. Okay, and this is your balanced diet look, which is containing, you know, whole grains, fruits and vegetables, meat components, your milk and milk products, plus the fat also is there, but in a minimum quantity, because you don't have to take it in a very large quantity, because they are going to lead you some disease or factors which run in your family history, which run in your body. So keto diet, ये हमने समझ लिया है कि keto और balanced diet में क्या फर्क है। Okay,
नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन्स, कीटो डाइट का मैं आपको बता देती हूँ। कीटो डाइट अगर हम फॉलो करते हैं, सो आप जो है जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। आई नो ऑल, ये क्लिनिशियंस में ही नहीं, ये पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, तो अभी हम इसके बारे में और मजीद डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी क्रेब्स साइकिल है, आप उसको बहुत ज्यादा जो है एक शट डाउन की स्टेट में लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकल जो रिएक्शंस है ये आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अगर किसी भी फैक्टर की वजह से आपकी क्रैप साइकिल डिस्टर्ब होती है या शट डाउन होती है, तो आपको बहुत ज्यादा जो है आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आपको फेस करनी होंगी। यू आर गोइंग टू फेस द सीवियर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट imbalances. Okay, you're going to face the problems of kidney stones and heart disease. You're going to have keto flu and keto breaths. Okay, तो हमें अपने जो हमारा एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है, हमें उसको भी हिंडर नहीं करना है, हमें उसमें कोई शट डाउन का फैक्टर नहीं इंगेज करना है जिसकी वजह से हमारी ही बॉडी को बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल इलनेस फेस करनी पड़े। ये केस प्रेजेंटेशन है जिसको मैं बताना चाह रही हूँ कि लाइक 32-year-old लैक्टेटिंग 8 week पोस्टमार्टम वुमन जो है वो हॉस्पिटल में आती है विद द कंप्लेंट्स ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, rhinorrhea and cough, reporting following a ketogenic diet and was found to have a pneumonia. The diagnosis was found to be a ketoacidosis. Okay, and जब उनसे ये पूरा ओवरव्यू लिया गया तो ऑब्वियसली जब आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के पीरियड में होते हैं तो यू हैव टू टेक हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, यू हैव टू टेक न्यूट्रिएंट डेंस डाइट। लेकिन सडनली दैट लेडी हैज shifted herself to ketogenic डाइट जस्ट बिकॉज ऑफ वेट लॉस। क्यों? क्योंकि उनको दोबारा से अपना वेट लॉस करना था, उनको वो अपनी फिगर अच्छी नहीं लग रही थी। ओके, नहीं अच्छी लग रही थी, बट लेकिन इन द एंड व्हाट शी फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ कीटोएसिडोसिस। तो अगर लाइक जो भी हमारी कम्युनिटी में है, ठीक है ना, तो हमने उनको लाइक every time dietitian is not over there at some kind of gynae facility, तो हमें उनको ये समझाना है, उनको बताना है कि आपने जो है अपने आप को किसी ऐसी डाइट पे फोकस नहीं करना है जिसकी वजह से आपको मजीद कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़े। ओके, तो ट्राई टू मेक देम अश्योर के यू आर गोइंग टू लूज वेट, बट यू हैव टू लूज वेट थ्रू प्रॉपर चैनल, बट नॉट पुटिंग योरसेल्फ ऑन कीटोजेनिक डाइट। ओके, नाउ अगेन ये भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है क्लिनिशियंस में। मैंने लाइक जब मुझे मेरे कलीग्स मिलते हैं तो वो मुझे बता रहे होते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर हमने अपना आप को स्विच कर लिया है एंड दे आर क्वाइट हेल्दियर। तो दैट्स ऑल्सो ए मिथ फॉर वेट लॉस। ऐसा नहीं है, यू नीड टू फाइंड आउट द रियल रीजन। आपने इसका रियल रीजन ढूंढना है। ग्लूटेन फ्री डाइट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज individuals who are dealing with the disease of celiac disease. Okay, अगर आप ग्लूटेन का फैक्टर निकाल देंगे तो उसमें आप ऑब्वियसली बहुत उसके बेनिफिट्स हैं, उसमें मल्टीविटामिन हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंस में आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, आप उसको मिस आउट कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे हैं। ओके, प्लस जो कैलोरीज आप एक ग्लूटेन फ्री डाइट से आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप ग्लूटेन के साथ रहते हुए वो आप कंज्यूम करते हैं तो देयर इज नो काइंड ऑफ बिग डिफरेंस, लाइक नो बिग डील। ओके, क्या आपने अगर आपने ग्लूटेन फ्री आपने कोई स्नैक ले लिया है और अगर आप एक होल व्हीट स्नैक ले लेंगे तो उनकी कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम ही होंगी, दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। Plus you are going to miss the you are going to don't you will not receive the best part of that gluten containing food which have abundance of vitamins and minerals. Okay, और कोई एविडेंस इसको सपोर्ट नहीं करता है कि आप ग्लूटेन फ्री की डाइट के ऊपर स्विच कर जाएं फॉर स्पेसिफिकली फॉर वेट लॉस। और इसके पोटेंशियल हार्म्स क्या हैं? ऑब्वियसली विच रिसर्च हैव shown that they are going to cause hyperlipidemia, hyperglycemia, cardiovascular diseases, deficiencies of micronutrients and fiber component बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। प्लस इट्स गोइंग टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ मर्करी आर्सेनिक पॉइजनिंग। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है लाइक हमारे पास मार्केट में ऑब्वियसली ग्लूटेन फ्री फूड्स अवेलेबल हैं और उसको जब लोग लेना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो
उसके अंदर जो है आपको फैट भी मिलेगा, वो खाली ग्लूटेन फ्री नहीं होगा, उसके साथ आपको दूसरी चीजें भी मिलेंगी, ओके, दूसरे केमिकल कंपाउंड्स भी मिलेंगे। तो उसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, आपके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स के या लाइक आपके सीएनएस के सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो इट्स बेटर टू नॉट टू टेक too much of gluten free foods, okay, specifically for weight loss आपने नहीं लेना है। but if the patient या individual जो है वो आपका रिपोर्ट करता है with celiac disease, so then it's recommended but not specifically for weight loss. Okay, so these are the signs and symptoms of arsenic poisoning. इस तरह से आपके रैश डेवलप हो जाते हैं, okay, आपके आर्म्स के ऊपर, हैंड्स के ऊपर रेड कलर के साइंस शो होते हैं। सो बेटर मेक श्योर योरसेल्फ, आपने देखना है कि आप जो चीज यूज कर रहे हैं वेदर वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर अगेन, ये समझ में आ गया होगा, यूज ऑफ वेट लॉस प्रोडक्ट्स लेबल्ड एज नेचुरल एंड सेफ एंड इफेक्टिव। क्योंकि एक हेल्दी ईटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बिल्कुल डेवलप होता जा रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसी तरह से आपको जो है बहुत ज्यादा जो है आपको मार्केट के अंदर गिमिक्स आपको बहुत मिलेंगे, आपको फ्रॉड बहुत मिलेगा, ओके। तो ये भी इट्स लाइक अ फ्रॉड, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी के साथ, जो आपकी बॉडी हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा खेल रहा होता है, आपको रिस्क फैक्टर्स के ऊपर डाल रहा होता है, ओके। सो what facts and research evidence shows, इसमें कोई हमारे पास क्लिनिकल डाटा नहीं है या कोई रिसर्च इसको सपोर्ट नहीं करती एज अ क्विक फिक्स टू जस्टिफाई फॉर सेफ यूज, नीदर अप्रूव्ड और गारंटीड। लाइक एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें लाइक कैंड्रिल की, ओके, स्वीटनर की, आर्टिफिशियल स्वीटनर की, तो उसको फूड ड्रग अथॉरिटी ने, आपकी एफडीए ने उसको अप्रूव किया हुआ है कि हाउ मच यू कैन कंज्यूम, ओके। बट इसके बारे में वी डोंट हैव एनी करंट एविडेंस, वी डोंट हैव एनी करंट डाटा और रिसर्च कि हम इसको कहें कि यस दे आर इफेक्टिव टू यूज फॉर वेट लॉस, ओके। सो साइड इफेक्ट्स इसके बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको डायरिया कॉज हो सकता है, आपको स्ट्रोक्स और हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ओके। इसमें जो है लाइक जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने एक लेडी है मेनोर, उन्होंने अपने टीम के साथ जो है इसके ऊपर ये जो आपके हर्बल सप्लीमेंट्स हैं विच क्लेम्स फॉर वेट लॉस, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी, उन्होंने देखा था। तो उन्होंने ये देखा कि इसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड मौजूद है, ओके, कंपैरेटिवली। तो वो आपकी डिजीज को बहुत ज्यादा लाइक आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हिंडर कर रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसमें टॉक्सिक अमाउंट्स बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं बॉडी के अंदर। तो शी सजेस्टेड कि इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है एंड दे आर नॉट गोइंग टू वर्क एज ए मैजिक पिल्स फॉर योर वेट लॉस। ओके, वेरी वेरी कॉमन, हमारे पास पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और जब हम उनका ओवरव्यू लेते हैं तो वो मिथ हम डिस्कस करेंगे कि स्विच टू एग वाइट्स फ्रॉम होल एग्स, ओके, दैट्स आल्सो ए मिथ। क्योंकि जब हम लोग पेशेंट से रिकॉल ले रहे होते हैं और उनकी हम डाइट हिस्ट्री मालूम कर रहे होते हैं तो वो हमें बताते हैं कि वो अंडे नहीं खाते हैं, ओके। सो व्हाई, क्यों? क्योंकि अंडा जो है वो उनकी ब्लड प्रेशर की कंप्लेन करता है, अंडा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और अंडा जो है वो डॉक्टर ने मना कर दिया है कि हमें नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि उससे दिल की बीमारियां बढ़ जाएंगी, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द रिसर्च एंड न्यूट्रिशन फैक्ट्स दैट व्हाट एक्चुअली एग इज डूइंग। अभी प्रायरली मिस युमना ने भी, उन्होंने भी डिस्कस किया है एग के बारे में। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि इसके अंदर जो है आपको ओनली यू आर गोइंग टू हैव 75 किलो कैलोरीज एंड प्लस हाई क्वालिटी 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन along with iron। इसके अंदर आयरन भी मौजूद है, प्लस मिनरल्स, विटामिन एंड कैरोटीनॉइड्स, ओके। एंड इफ यू आर गोइंग टू सी द अनसैचुरेटेड फैट जो कि आपकी हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है, इट्स दे आर ओनली 5 ग्राम, ओके। और जो सैचुरेटेड फैट जिसको हम मोस्टली हम वो करते हैं, मतलब प्रिवेंट करवाते हैं डाइट के अंदर कि आपने ये चीज नहीं लेनी है, इट्स ओनली 1.7 ग्राम। सो नो बिग डील, ओके, कि अगर वो अंडा खा रही है या अंडा खा रहा है, ओके। नाउ
दिल की बीमारियां एक्चुअली किससे बढ़ रही हैं, हमें इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। वो तो एक अंडा है, ठीक है ना, इट्स जस्ट एन एग, ठीक है ना, एक इनोसेंट एग है वो, ठीक है, इट्स डूइंग नथिंग। जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो आपके फैट्स मौजूद हैं, ठीक है ना, जिसको बैड फैट्स को हम ट्रांस फैट भी कह रहे होते हैं, ठीक है, वो आपके एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्राइड फूड से आपको मिल रहे होते हैं, या प्रोसेस्ड फूड से मिल रहे होते हैं, या बेक्ड गुड से मिल रहे होते हैं, ओके, जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड हुए हुए होते हैं। तो हम एक अंडे को बंद करके, अगर इफ द पेशेंट और इफ एनी इंडिविजुअल अगर अंडे को बंद करके वो पिज्जा इस्तेमाल कर रहा है, या वो चीज इस्तेमाल कर रहा है, या कोई भी इस तरह का बेक्ड गुड इस्तेमाल कर रहा है, या केक इस्तेमाल कर रहा है, तो मतलब और वो कितना इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है, ओके। सो व्हाट रिसर्च आर सजेस्टिंग नाउअडेज, वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि द कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन एग have only a minimal effect on heart disease, उससे heart disease का कोई ताल्लुक नहीं है। You can easily take 1 egg per day and there is no association with cardiovascular diseases, okay। तो आप अपने patients को आराम से उनको ये काउंसल कर सकते हैं कि you have to take 1 egg with yolk, अब आप उसको बॉईल करके इस्तेमाल कर लें, इट्स अप टू देम, ठीक है। आप बिकॉज द थिंग्स वी नीड टू फोकस जो हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करेंगी, हमें जो हॉल्ट करानी है वो हमें प्रोसेस्ड फूड को हॉल्ट कराना है, ना कि हमने अंडे को बंद करवाना है, ओके। ऑल राइट, ये भी इट्स एक्चुअली ये भी बहुत ज्यादा आजकल एक है कि हम लोग अपने इर्द गिर्द और सुन रहे होते हैं ये भी कि ऑर्गेनिक फूड इज बेस्ट, ओके, दैट्स ऑल्सो ए मिथ। उसका क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। Is that really so? I don't think so, actually. We have, less confirmatory sources. There is no significant difference between organic and commercially prepared. आप किस तरह से identify करेंगे? You don't have any kind of measures. You don't have any tools to assess that particular patient to assess that particular food कि वो organic farm से आया है या आपके पास commercially prepare होकर आया है, okay? आपने यूज करना है, yes, it's written, आप जितना आप नेचुरल की तरफ जाओगे उतना आपके लिए बेहतर है, लेकिन द थिंग इज कि इसको भी हमें किस तरह से यूज करना है, ठीक है ना। क्यों, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग द फॉर एग्जाम्पल इफ एनी वन, ठीक है ना, स्टार्टेड टेकिंग ऑर्गेनिक घी, ओके, नो मैटर, घी ले रहे हैं, सही है। अब किस तरह से ले रहे हैं ये भी तो हमें देखना है। अगर आप घी लेके और आप अपनी कार में ड्राइव करके आप अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, देन यू हैव अ सिटिंग जॉब और आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिर वो ऑर्गेनिक भी आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो कोई it's not going to be considered as a very healthy substance for your body, okay। तो आपने लाइफस्टाइल को भी अपने इस तरह से चेंज करना है, आपने डील करना है कि अगर आप ऑर्गेनिक कोई फूड ले रहे हैं तो आपने उसके साथ मतलब इस तरह से अपनी प्रैक्टिसेस बनानी है कि उस ऑर्गेनिक फूड लेने का आपको फायदा हो, ओके। अगेन आपने पोर्शन कंट्रोलिंग करनी है विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब चाहे कोई सा भी हम फूड इस्तेमाल करते हैं, ये हम अक्सर अमूमन बेशतर ये चीज हम भूल जाते हैं कि हमें कितना जो है किस मिकदार में हमें किस खाने को इस्तेमाल करना है, ओके। तो हमें ये देखना है कि अगर हमें किसी ने अलाउ कर दिया है कि यस इट्स ऑर्गेनिक घी और आप इसको रोटी पे या पराठे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आपने यू हैव टू टेक अबाउट लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 टेबल स्पून इन योर पराठा, ऐसा नहीं करना है। हमने उसका भी पोर्शन कंट्रोल कराना है। पोर्शन कंट्रोल को हमें बहुत ज्यादा अपने जहन में रखना है, हमें देखना है कि हम जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, इसमें देखें मतलब ये फैक्टर आ जाता है कि व्हाट फूड यू आर यूजिंग, चाहे वो कैसा भी हो कितना भी हो, लेकिन इन दी एंड आपने अगर उसका पोर्शन ज्यादा लिया है या उसका पोर्शन कम लिया है तो इट्स गोइंग टू
इफेक्ट, आपको वो रिजल्ट उसके सामने शो होंगे कि आपने मतलब आपकी बॉडी में वो चेंज आएगा, आपको पता चलेगा कि आइदर ये मैंने ज्यादा लेना था, आइदर ये मैंने कम लेना था। ओके, तो व्हाट स्टडी, एक स्टडी हुई थी इसमें भी, क्योंकि ये भी आजकल एक कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर्स मिल रहे हैं, प्रोटीन फूड्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ड्राई करके उनके पाउडर्स बनाए जा रहे हैं, एंड दे आर, जैसे एलोवेरा के आपको बहुत ज्यादा मार्केट में मिलेंगे, ठीक है ना, फ्रूट पाउडर्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू यूज इट। वो ले रहे हैं इस चीज को, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसमें कितना ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल केमिकल मौजूद है, कितना हैवी मेटल मौजूद है, जो कि ऑब्वियसली आपकी बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। ओके, लाइक अगर आपने लेना ही है तो स्विच योर सेल्फ, आप पाउडर की तरफ क्यों जा रहे हैं, आपने पाउडर नहीं लेना है। फिर इफ यू आर aiming to take organic food, so it should be organic, it should be fresh, it should be like आपने फिर वो फ्रूट ही इस्तेमाल करना है, you don't have to use that particular food powder. Okay, and see, जो पोर्शन कंट्रोल की हम बात करें कि if it's a, you know, like if anyone is reluctant to take certain food, कि मुझे तो ये इस्तेमाल करना ही है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक है, वो क्लेम कर रहा है ऑर्गेनिक है, तो ओके, आप उनको ऑर्गेनिक आप बोलेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 टीस्पून और 2 टीस्पून, इससे ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो वो चीज भी आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे जब ये भी हमने बहुत ज्यादा सिनेरियोज देखे हैं, ओके, कि पेशेंट रिपोर्ट्स विद हाइपरटेंशन एंड देन उनको ये बताया जाता है कि आपने नमक लेना छोड़ देना है, आपको बीपी की शिकायत हो गई है, एंड दैट्स आल्सो ए मिथ। अब उसको हम ये यहाँ पे ब्रेक करेंगे कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने बिल्कुल अपनी जिंदगी से नमक को निकाल देना है, नमक नहीं इस्तेमाल करना है। ओके, इसमें मैं आपको एक क्विज प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ कि लाइक an elderly female aged 56 years reported in ER with drowsiness and unconsciousness. Upon history, she revealed that patient is newly diagnosed of hypertension, and diet history revealed no intake of salt in meals as advised by local physician, to stop taking salt and now taking no salt on her own. मतलब उन्होंने जो है नमक, जो एक प्लेन नमक होता है, आयोडाइज्ड नमक होता है, उन्होंने उसको लेना बंद कर दिया था, एंड शी स्विच्ड हरसेल्फ टू नो सॉल्ट पैकेट्स, जो कि क्लेम कर रहे हैं कि ये आपको मार्केट में लो सॉल्ट के नाम से मिलेंगे या नो सॉल्ट के नाम से मिलेंगे। ओके, सो लैब मार्कर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिपोर्टेड टू बी लाइक सोडियम 110 का था उनका, पोटेशियम 6.7 था, एंड बीपी वाज ऑफ 4570. Okay, so she was treated in an ER with boluses of ringer lactate and saline and K oxalates. Okay, so what our nutrition domain has to say about it? फैक्ट ये है कि यू हैव टू, आपने उनको बताना है कि यू शुड गो टू द डाइटिशियन, आप डाइटिशियन से कंसल्ट ले। ओके, नाउ व्हाट वी हैव के न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव से, देयर इज ए डाइट विच इज कॉल्ड डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। आप इसको डैश डाइट हम बोलते हैं। ओके, डैश डाइट रिकमेंड की जाती है। ओके, और इसमें जो है अगर पेशेंट कोई इस तरह की नो सॉल्ट या लो सॉल्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो इवेंचुअली वो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हाई होता है, जो कि आपने देखा भी है कि उन्होंने रिपोर्ट किया है। ओके, इसको भी हम आगे और मजीद डिस्कस करते हैं। सो इसमें रिस्ट्रिक्शन कितनी है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सोडियम यू नीड टू टेक इन योर डाइट। You have to take just 1 teaspoon of salt in 24 hours. That is going to be 2300 milligram. तो ये तो हमारी न्यूट्रिशन या हमारा डोमेन भी नहीं कह रहा है कि आपने नमक बिल्कुल बंद कर देना है। नो, हाउ कैन यू स्टॉप सॉल्ट? ये आपका लाइक इट्स लाइक योर बॉडी करंट। अगर आप इस करंट को ही निकाल देंगे तो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं उनका भी फायदा नहीं होगा। तो इट सर्व्स एज अ करंट ऑफ योर बॉडी। हमें पता है कि पेशेंट जब डायरिया में जाता है, उसके पास रिजर्व्स होते हैं, उसके पास स्टोर्स होते हैं, उसके पास प्रोटीन, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब मौजूद होता है, बट द पेशेंट इज लेथार्जिक। व्हाई इट इज लेथार्जिक? सो वो ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दे आर गोइंग टू सर्व योर, ये बिल्कुल आपके करंट, बॉडी करंट की तरह काम करते हैं। ओके, तो हमें बिल्कुल इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है, हमें पेशेंट्स को काउंसिल करना है। आप डाइटिशियन
को रेफरल देंगे, आप उन्हें बताएंगे, ठीक है ना, तो उससे ये है कि डाइटिशियन इज गोइंग टू बी एबल टू काउंसिल देम विद डूज एंड डोंट्स ऑफ द डाइट। उन्हें क्या लेना है या क्या नहीं लेना है, ये डाइटिशियन ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है कि उन्हें अपनी किस तरह से डाइट को एडजस्ट करना है। Okay, and again, can a salt substitute cause high potassium levels? Sometimes called light or low sodium salt, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में आपके पास अवेलेबल है लो सॉल्ट के नाम से या नो सॉल्ट के नाम से। सो अगर वहां पे सॉल्ट मौजूद नहीं है, सोडियम मौजूद नहीं है, तो फिर मौजूद क्या है? ओके, तो a quarter teaspoon serving of 1 potassium chloride salt substitute contains about 800 milligrams of potassium। मतलब उसमें उन्होंने पोटेशियम ही बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे जब सोडियम नहीं है तो उसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा, उसके अंदर दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होंगे। ओके, एंड दीज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल, कैन बी वेरी डेंजरस व्हेन यू हैव कंडीशंस लाइक किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर डिजीज और डायबिटीज। आपके लेवल्स एकदम से रेज हो सकते हैं, आपको नहीं आइडिया आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप तो उसको एज अ फ्रीली आप उसको डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, आप डाइट के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर मौजूद क्या है। उसके अंदर एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट एक अबंडेंस में है जो कि आपके दूसरे बॉडी फंक्शंस को डिटोरिएट कर सकता है। ओके, प्लस अगर इस तरह से हम कोई सॉल्ट सब्स्टिट्यूट या कोई इस तरह की चीजें लेते हैं तो हमारे द थिंग इज के जो हमारी एस इनहिबिटर्स हैं या पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, वो भी आपकी जो बॉडी के पोटेशियम लेवल्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि आपने कौन सा फूड अलाउ किया है, कौन सा उनको सॉल्ट सब्स्टिट्यूट बताया है, किस तरह क्या आपने उनको गाइडेंस देनी है। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी यू जस्ट हैव टू क्विट सॉल्ट फ्रॉम योर डाइट। एक्चुअली यू नीड टू फोकस कि व्हाट यू हैव टू मॉडिफाई इन योर डाइट। तो जब मॉडिफिकेशन नहीं होगी, मॉडिफिकेशन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने किस फूड एलिमेंट को डाइट के अंदर इंगेज करना है और किस सॉल्ट या पोटेशियम कंटेंट फूड को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। Okay, so our next myth is obviously ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज अगर हम अपने रेजिडेंट्स से मालूम करते हैं तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा आती है कि आई एम स्किपिंग मील्स। एक्चुअली ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम स्टारवेशन पे चले जाएं, ओके, एंड वी आर नॉट गोइंग टू ईट यू नो आवर मील, जो कि हमें वेट लॉस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। Okay, so that's also a myth. You don't have to skip meals for weight loss. What you actually need to do, you have to select the food। आपने अपने फूड सिलेक्शन के ऊपर आपने फोकस करना है कि आप अपने फूड सिलेक्शन देखें कि आपका फूड सिलेक्शन कैसा है। इट कैन, ठीक है ना, इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली बैलेंस डाइट। आपने बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस करना है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके प्रोटीन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स वो सब मौजूद हों। ठीक है, प्लस आपने पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है। पोर्शन कंट्रोल इज द एक्चुअली द की। क्यों? द थिंग इज कि जब आप स्टारवेशन पे जाते हैं, जब आप अपना मील स्किप करते हैं, एंड वी ऑल नो कि हम लोगों की जो ये मेडिकल फील्ड है, अलाइड हेल्थ केयर फील्ड है, ठीक है, तो इसमें हमें पता होता है कि अलोंग विद द फिजिकल एक्टिविटी वी आर आल्सो डीलिंग यू नो विद आप हमारी जो है हमारा जहन भी इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। फिजिकल तो कर ही रहा होता है, लेकिन हमें हमारा मेंटल जो है ना, बहुत ज्यादा हम थक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है, हमें फोकस करना होता है पेशेंट की डिजीज को डील करने के लिए। ओके, तो इट्स ये बहुत ज्यादा एक रिलेशन है, ठीक है, ब्रेन टू गट साइकोलॉजी। ऑब्वियसली जब आप स्टार्व कर रहे हो, ओके, एंड देन यू आर डीलिंग विद पेशेंट्स, जब आप पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो अगर मैं आपको एक स्टारवेशन पीरियड के बाद, जैसे ये आप इससे एक एग्जांपल ले लीजिए कि जब हम रोजा रखते हैं, ठीक है ना, तो रोजे के बाद हमें सारी अच्छी चीजें जो है, जो कि मोस्टली फ्राइड आइटम होता है हमारा, वो हमें बहुत अच्छी लग रही होती है। तो क्यों अच्छी लग रही होती है? वो अच्छी इसलिए लग रही होती है क्योंकि हमारी बॉडी स्टारवेशन में होती है और हम उस चीज को देख के कहते हैं कि नो, दिस फूड, दिस पर्टिकुलर आइटम इज गोइंग टू गिव मी द एनर्जी, मुझे ये ताकत देगा, जबकि ऐसा नहीं है। ओके,
वो आपको ताकत नहीं देगा, वो आपकी जो है, आप वो अभी क्या करेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगी, वो आपको वेट लॉस में कोई हेल्प नहीं करेगा। इंस्टेड वो आपका हो सकता है वेट गेन करा दे। तो अगर आप फोकस नहीं रहते हैं, ठीक है, आप अगर हम बहुत ज्यादा जहनी दबाव और इस तरह के शिकार होते हैं, ठीक है, तो हमें इस तरह के खाने बहुत अच्छे लग रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्राइड होते हैं या फैटी होते हैं या जिनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत मौजूद होता है। ओके, तो हमें अपना मील डिवाइड करना है, लेकिन स्किप नहीं करना और उसका पोर्शन कंट्रोल करना है। ओके, सेकेंडली हमें फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना है कि हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं। अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, हमारी सिटिंग जॉब है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि हमारा जो फूड सिलेक्शन है उसमें हमने कौन से फूड को इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, आप क्योंकि द थिंग इज कि जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं, हम लोग नहीं सोचते, वी डोंट थिंक एक्चुअली, हम लोग नहीं सोच रहे होते कि हमें किस तरह का खाना लेना है। वी जस्ट वांट कि हमें जो इस वक्त खाना मिल रहा है उससे हमें एनर्जी मिल जाए। ओके, तो फिजिकल एक्टिविटी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू कंज्यूम 2 समोसास, ओके, अगर मैं 2 समोसे लेती हूँ तो आई नीड टू, मतलब मुझे शायद अपने हॉस्पिटल के शायद 2 से 3 चक्कर लगाने पड़े उसको मेटाबलाइज करने के लिए, उसकी कैलोरीज को यूज करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए। तो आई एम गोइंग टू बी फोकस्ड बिफोर ईटिंग दैट 2 समोसा। ओके, सेकेंडली हाई कैलोरी स्नैक्स अगर आप लेंगे तो वो आपका वेट गेन कराएंगे, ठीक है ना। इट्स योर अजम्पशन दैट इफ यू आर गोइंग टू स्टार्व यू आर नॉट गोइंग टू यू आर गोइंग टू हैव द वेट लॉस रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है, वेट लॉस के रिजल्ट्स आपके सामने नहीं आएंगे। ओके, एंड फोर्थली यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खाते हैं आप उसी से पहचाने जाते हैं। ओके, तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा कमर्शियल प्रिपेयर्ड फैटी फूड को आप ले रहे हैं, तो आप फिर वो वहां पे स्टोर भी हो रहा है, आप उसको जमा कर रहे हैं, दैट लीडिंग टूवर्ड्स वेट गेन। ओके, और ऑब्वियसली पिक्चर ने एम्फेसाइज कर दिया है कि किस तरह से कि अगर आपको शेप में रहना है तो आपने फूड सिलेक्शन भी वैसे ही करना है जो आपकी हेल्थ को प्रमोट करे, ना कि उसको डिटोरिएट करे। ओके, दिस इज अ रिसर्च, ये रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने ये पता किया था कि जो मोस्टली पीपल अपना डिनर स्किप कर रहे होते हैं तो उन और वो खाली पेट सो जाते हैं, ठीक है, तो उनके बॉडी वेट में 10% का इंक्रीमेंट हुआ था। मतलब उनका बॉडी वेट जो है वो 10% इंक्रीज हुआ था, ना कि उनका डिक्रीज हुआ। तो इट्स आई थिंक इट्स यूजलेस कि आप अपना खाना छोड़ें अपने वेट लॉस के पीछे। ओके, इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डाइटिशियन। Okay, yes. Take ABC juice for treating anemia. That's also a myth and it's our myth number 11. ये हमें पता है, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, हमें एप्पल दिख रहा है, हमें बीटरूट दिख रहा है, हमें कैरेट दिख रहा है, and they are the great sources of iron. So let's find out. Okay, now what are the nutrition facts? Yes, an apple a day keeps a doctor away. बिल्कुल, ये एक बहुत ज्यादा जो है मतलब एक फेमस सेइंग है, ठीक है ना, जो कि डेवलप की गई थी। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये इसलिए डेवलप की गई थी ताकि अगर आप हेल्दी ईटिंग करेंगे तो आपके पास डॉक्टर्स का विजिट कम से कम होगा। ओके, बट पीपल हैव टेकन इन मतलब उसको दूसरे ओवरव्यू में उन्होंने कंसिडर कर लिया है। सो आज मैं उसको इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर रही हूँ। इट्स गोइंग टू बी लाइक एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट इफ the apple isn't working, dietitian will treat in a new way. Okay, यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट होते हैं पेशेंट्स, स्पेशली इन ऑब्स एंड गायनीक के, वो अपने आयरन लेवल को इंक्रीज करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है ये एप्पल का और कैरेट्स का यूज कर रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर कंप्लेनिंग डिस्पाइट ऑफ टेकिंग दैट के उनके वो लिथार्जिक होती हैं, ठीक है ना, उनके अंदर वो पावर नहीं होती कि वो तो सब कुछ खा रही हैं खून बनाने के लिए, फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो आज हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और हम ये वो करेंगे कि जितना हो सके हमें हमें देखना है कि आयरन का कंटेंट एक्चुअली इन चीजों के अंदर कितना मौजूद है। सो इफ यू आर गोइंग टू सी द एप्पल विच इज 100 ग्राम, तो उसके अंदर आयरन का कंटेंट इज गोइंग टू बी लाइक 0.1 मिलीग्राम, ठीक है ना, नो
नो बिग डील, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो स्टॉप टेकिंग एप्पल फॉर आयरन बिल्डअप, ओके। विटामिन सी ऑल्दो उसके अंदर बहुत ज्यादा है, दैट्स 5.8, ओके। और अगर हम बीट रूट को देखते हैं, दैट्स 100 ग्राम, उसके अंदर भी आयरन का जो अमाउंट है वो 0.8 मिलीग्राम है, प्लस विटामिन सी इज 4.9 मिलीग्राम। कैरेट अगर हम देखते हैं 100 ग्राम, तो वो भी 0.4 है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको 1000 ग्राम के पोर्शन में कुछ कंज्यूम करने की कोशिश करें, तो शायद आपको 2% तक कुछ आयरन आपको मिल जाएगा, ओके। तो इट्स रिकमेंडेड कि आपने ये नहीं लेना है, आपने इन फूड सोर्सेस को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि फिर वो कहते हैं कि ये फल तो ब्राउन हो जाते हैं, तो ब्राउन ये अपनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से होते हैं, ना कि आयरन कंटेंट की वजह से, ओके। नाउ कौन से फूड ऐसे हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे इन बिल्डिंग अप योर आयरन इन, ओके। तो कॉम्पोजिशन जो है वो इस तरह से है कि यू हैव टू इनकॉर्पोरेट बीफ चिकन इन योर डाइट विच इज कंटेनिंग अबाउट 3.3 to 2 milligrams of iron, okay, and it's cooked. Liver, kidney, your organ food, 2.5 ounce, it's going to contain 5 to 4.4 milligram of iron. एंड लेंटिल्स, बीन्स एंड पीस, इसको हम कह सकते हैं लोबिया, चने, फलियां, ठीक है, या अपनी अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। इट्स गोइंग टू बी 3/4 कप cooked and it's going to contain 4.9 to 3.5 milligrams of iron, okay. Eggs and nut 2.2 to 1.8 milligrams of iron आपको देगा। So अगर आपने आयरन बिल्डअप करना है तो हमें इन तरह के फूड्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है फॉर बेटर फॉर्मेशन of blood, and in terms of gaining, in terms of storing iron stores, okay. Okay, my last myth that all dietitians are same, सही है, क्योंकि हमें आपको दिख रहा होगा कि डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, दोनों में फर्क क्या है। तो वो फर्क हम आज आपको बताएंगे कि व्हाट्स एक्चुअली द डिफरेंस, एंड इट्स आवर मिथ नंबर 12 के डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट सेम नहीं होती हैं। यू सी, डाइटिशियन जो है वो एक्चुअली एक एक्सपर्ट होती है न्यूट्रिशन की फील्ड में, जो कि आपको साइंस बेस्ड एविडेंस की लाइक रिसर्च बेस्ड एविडेंस के ऊपर जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रही होती है अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को। प्लस उनकी जो एजुकेशन है वो बैचलर्स डिग्री की है, वो अपनी डाइटेटिक इंटर्नशिप कंप्लीट करती हैं, उन्होंने अपनी नेशनल बॉडी से एग्जाम पास किया होता है, और प्लस उनको कंटिन्यूइंग न्यूट्रिशन सेमिनार्स के अंदर इंगेज होना होता है, ओके। सो अगर मैं बात करूं हमारे अपनी पाकिस्तान की, सो वी हैव पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल वर्किंग इन आवर फैसिलिटी। हम लोग मोस्टली यहाँ पे रजिस्टर्ड क्लिनिकल डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, ओके। एंड ये हमारी मतलब लाइक कि आपको जब आपके पास एक नेशनल बॉडी होती है तो वो आप को आइडेंटिफाई करके, आपको पास करके, आपको लीगल करती है कि यस यू आर एप्लीकेबल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन इन द फील्ड। आप उसमें आप जा सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स से मिल सकते हो, ओके। एंड न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन, वो अपने आप को कह रहे होते हैं, गिमिक्स हैं, फ्रॉड्स हैं हर तरह, ओके। एजुकेशन उनकी कोई आइडेंटिफाइबल नहीं है, ओके। एक्रीडिटेशन उनकी कोई नहीं है, ठीक है ना, वो अपने आप को कहीं से अप्रूव भी नहीं करवाते हैं, वो कहीं से अपने CNERs भी नहीं लेते हैं। सो द सिनेरियो इज कि एवरी रजिस्टर्ड डाइटिशियन इज अ न्यूट्रिशनिस्ट। बिल्कुल, वो बिल्कुल न्यूट्रिशन के रोल भी आराम से परफॉर्म कर सकती है, लेकिन every nutritionist is not a registered dietitian, so you need to make sure कि आपके पास आपके फैसिलिटी में जो मौजूद हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियंस हैं, ओके। लास्टली मैं कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूंगी कि हैविंग डाइटिशियंस एज अ मेंबर ऑफ योर हेल्थ केयर टीम, क्या होगा व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है ना, आप प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत बेहतर तरीके से करवा सकते हैं डिजीज का। डाइटरी काउंसलिंग जो है वो डाइटिशियन प्रोवाइड करती है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। सेकेंडली, डाइटिशियंस जो है वो जो इंटरवेंशन करती हैं उसके ऊपर वो फॉलो अप रखती हैं कि वेदर द रिजिमी
which has been suggested to the patient, उसका कोई outcome है, वो बेहतर बना रहा है situation को, वो health care mutual understanding के साथ, teams के साथ वो कुछ work कर रही है कि नहीं कर रही है. Okay. एंड सेकेंडली, जब आपके पास टीम होती है, तो जब आपके पास एक पूरी टीम होती है तो आप बेहतर तरीके से न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि आपने पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है, बिकॉज जब एक प्राइमरी टीम ऑन बोर्ड होती है और जब एक न्यूट्रिशन ऑन बोर्ड होता है, जब एक फिजियोथेरेपिस्ट ऑन बोर्ड होता है, तो आई थिंक कि पेशेंट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट आता है, और जो कि बहुत सिग्निफिकेंट होता है, बहुत अप्रोप्रिएट होता है, जो कि उसकी वेल बीइंग में एक्चुअली हेल्प कर रहा होता है. सो दिस इज द जो मुझे हाईलाइट करनी थी, एक डाइटिशियन और डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट एक हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर, वो मैंने आपसे डिस्कस की है. ठीक है, एंड दीज वर माय रेफरेंसेस, एंड थैंक यू. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी इन फ्यूचर, तो आप मुझे इस एड्रेस पे आप मुझे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Thank you so much, Ms. Misbah Kamran, for guiding us in the best way. I would like all of you to drop your questions if you have any queries related to our sessions today. We have one question till now. What are the names of enzymes that are used during pancreatitis? Ms. Yumna Sadek, can you hear me? Yes, I can hear you. So, the question is, can I repeat the question? नो मैंने सुन लिया था. एक्चुअली जो एंजाइम जिसके बारे में हमने बात, मेरी प्रेजेंटेशन में बात हुई थी, उसमें हम यूजुअली क्रेयॉन यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटेज होते हैं. तो ये चीज़ जो हम दे रहे होते हैं, लेकिन वो भी तभी देंगे जब आपके पेशेंट को फैटी स्टूल्स या स्टेटोरिया जिसको कहते हैं कि वो हो रहा होगा, तो हम यूज करेंगे, वरना हर पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट्स को नहीं यूज कर रहे होते एंजाइम्स. Any other questions you have? So I think we don't have any other questions. So now we are going to wind up our session. But before winding up this session, I would like all of you to please fill the feedback form to get the CME certificates. I would like to place my hearty thanks to all my speakers and audience that joined our session today. If you have any other myths or misconceptions, so you can ask on the given email addresses, so we can answer them to you as well. Thank you so much once again.